Good evening, everyone. We will start with the session in the next few minutes. We are waiting for more people to join. अगले कुछ मिनट में हम सेशन स्टार्ट करेंगे. हम लोग और स्टूडेंट्स के जुड़ने का वेट कर रहे हैं. So please wait.
almost 180 people have joined. We will start the webinar in the next 5 minutes. Thank you for waiting, everyone. We are going to start with the webinar very soon. Once again, thank you for joining us. Please wait for 2 more minutes.
So, hello everyone, and welcome to today's webinar by Software India. Thank you all for joining us in today's webinar. My name is Anirudh Raj Srivastav, and I'm the Manager Operations and HR from Software India. And before we begin with the session, I would just quickly help you all with the very understanding of this webinar, the company, and why is this webinar being organized. मैं आप लोग को बताऊंगा कंपनी के बारे में, वेबिनार के बारे में, और ये वेबिनार क्यों ऑर्गेनाइज हो रहा है इसके बारे में भी, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल यू स्टूडेंट्स. बट बिफोर दैट, प्लीज क्विकली raise your hands if I'm audible. Perfect. Hands down, everyone. Raise your hands if this is not your first webinar with SoftPro. अगर आपने SoftPro के previous webinar courses attend कर रहे हैं तो please raise your hands. कोई भी previous webinars. Okay, hands down, everyone. I would love to know कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो लोग SoftPro India का first webinar attend कर रहे हैं. That's very nice. जो लोग SoftPro India के द्वारा organized first webinar attend कर रहे हैं, please write in the chat box your college name. Let us see किस किस कॉलेज से स्टूडेंट्स हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं इस वेबिनार में. We have Dr. Ramanand Yavati University, GEC Vaishali, IPEC, Vanasthali, Kashi, okay. Delhi University as well. Supal College, Buxar, GP Madhavgarh, GEC Bhojpur, KIT, Indraprasth, Hindustan College of Science and Tech, West Champaran. She's from Indraprasth, okay. BPMC Madhepura as well. BPD Lucknow, okay. CCS University Meerut, KNIT Sultanpur, Triple MUT Gorakhpur, Sitapani Institute, okay. So not only from UP but also from Bihar and NCR people are here with us. PC Purnia, IIT Lucknow, KIT. Okay. GC Banka, GC Ajmer pass out. So pass out students भी हम साथ जुड़े हुए हैं. That's very nice to know. कि students who are no more students but graduates are also here at the webinar. कोई restriction नहीं है. You can be a first year, second year, third year, fourth year or a pass out. पढ़ाई की कोई सीमा नहीं होती. We all know that. St. Andrews Institute of Technology and Management, Gurgaon. Okay. Welcome, Rishabh. CT Jalandhar, SCE Saharsa, Lucknow University, Delhi University. Great. GEC Gopalganj as well. BBD UCB students and BBD ECCB students, and that's nice. Students from IIT Agra are also here. Students from IIT Lucknow are here. IIT Ayodhya are here. So IIT से भी students हमारे पास हैं. Alok is from IIT Bombay. That's very nice. Welcome, Alok.
it feels very good to know कि due to this facility of online lectures, online classes, online webinars, online seminars, we can learn from anywhere. There's no boundary, there's no foundation, and it feels very, very good. It is a moment of pride that we as a company are training students from all over the region. So one more state, Maharashtra, is here with us. 3 people from IIT Bombay are here. Feels great, really. Students from Darbhanga are here. BBD NITM is also here. So whole BBD group is here. Every year, Software India organizes seminars and workshops, like tens and twenties of seminars and workshops in the BBD group since last many years. Anand is from SRM Chennai. So again, some person from another state, another different region, South India is here from SRM Chennai. GP Lucknow is also here. MIT Muzaffarpur, United Prayagraj, again a very nice college group, United Group, UCER, UCEM. Very good relations with United College. Every year we organize workshops and webinars and seminars for United. Also faculty development programs. Anand is from SRM Chennai as well. Great. Prashant is from Jharkhand. Yasu is from Delhi. Nice to know. Now quickly we will start with the session. Kumar Shanu has said he's from India. Oh, that's perfect. That's very nice to know. And that is what our aim is. This company's name is Software India, and that is our aim, to help shape the future of the country. And we do that by educating the students, because students are what the future is. So future engineers ko padha ke, future shapers ko padha ke hi, we aim at shaping the future of the nation. Telling you more about the company very quickly now before the session. Software Group of companies was founded by technocrats from IIT and IET. हमारे जो founders थे, they are from IIT Kanpur and IET Lucknow. Software India's tagline is bridging the technology gap. Our aim is to bridge the technology gap. We all know that there is, of course, a difference between a student and a professional. Here at Software, we make a student go through the changes and the processes that are required to begin their journey into their professional lives. And we do that by welcoming the students into the world of technology. You can see our presence over here. अगर presence की बात करें, तो we have a global presence. You can see that we have the Software headquarters, that is Software Tower in Lucknow. We have the headquarters of our training division, that is Software House in Lucknow. We also have the head office of Polyprep in Lucknow. Along with that, we have a virtual office that operates from Malaysia. We have an operations office that operates from Malawi, South Africa, where we train the students of different universities of Malawi and help them with their understanding of computer softwares and overall development. We are planning to grow more and expand more in the coming years. This is the infographic chart of Software you can see. You can see that in the year 2004, Software India Computer Technology was established, which is the software development division of Software. In 2008, we came with Software Learning Center, which is a training and internship division of Software India. 2014, Software Innovations was established, which is the research and development wing of Software. Software Foods, a very new venture, which is the agro products division of Software, was established in 2018. And last year, in 2020, Software's experts came up with Polyprep by Software.
What is Polyprep? I will tell you in the coming slides because that is very important for you to know. Telling you about the founder of SoftPro, Engineer Ajay Chaudhary sir. Engineer Ajay Chaudhary sir completed his BTech from IIT Lucknow. He then worked for several companies in several countries. He has 25 plus years of experience of working in different countries, of course, India, South Africa, Malaysia, Singapore, Kenya, Tanzania. And the best thing is, after gathering all this experience of 25 plus years, so Ajay Chaudhary came back to Lucknow. He came back to Lucknow because he wanted to give the people of Lucknow what they did not have. He wanted to give the people of Lucknow what they deserved. And this will of Sir Ajay Chaudhary gave birth to the idea that we know today as SoftPro Group. So along with being the managing director and chairman of SoftPro Group, Sir Ajay Chaudhary is also the member of the Academic Council of IIT Lucknow, the Board of Technical Education of IIT Lucknow, and the Board of Studies of Dr. Ram Manohar Lohia, Awadh University. He is also the former member of the Executive Council of Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, which is AKTU, formerly known as UPTU. Coming to the leadership team of SoftPro, the creators and innovators of SoftPro, we have Ms. Yashi Asthana, who is the Chief Executive Officer of SoftPro Group, Engineer Brajesh Mishra sir, who is the Senior Manager IT of SoftPro, and Mr. Rohit Kumar sir, who is the Chief Technical Officer of SoftPro. These are the pillars of SoftPro which drive SoftPro to achieve new levels of success with time. Along with the leadership team, this is a team of experts which aims at carving SoftPro into being a better version of itself and driving SoftPro to achieve new milestone along the way. So this team of experts guides and gives its best to SoftPro Group. Plus, we have consultants on every domain, be it any branch of engineering, CS, IT, EC, EE, CE, ME, or any domain of training, be it theoretical, practical, technical, like soft skills, HR skills, personality development. We have consultants on every domain. And this varied approach of SoftPro towards training the students of the region of the country has made us the largest learning center of the region. Very proudly of an achievement of SoftPro Group, so Pratibha Samman Award in the year 2019. In the year 2019, SoftPro India broke all records of placement and placed 120 students from all over the colleges of the state of Uttar Pradesh, which is the highest placement record in the history of Uttar Pradesh. And that is why the Board of Technical Education and Government of Uttar Pradesh awarded us with the Vishisht Pratibha Samman Award. We provide trainings to all the students. We have a program of 45 days summer training for the students of BTech, vocational training of 60 days for the students of diploma. We have industrial training of 6 months for the students of BCA and MCA, and we have winter training of 30 days for all the students. All these trainings are project based, the projects are live, and the students get hands-on experience in these trainings, which makes the training very fruitful for all the students. Now, very important thing, why is this webinar being organized? This webinar is being organized because of a very important thing. Let me quickly mute the chat box because there are some disturbing elements in the chat box who have been continuously texting. So I will quickly tell you why this webinar is being organized. I'm telling you all this because this all is very important for you to know for your future webinars, workshops, and trainings, because this is something that is huge. And after that, quickly, I will introduce you to the session and the trainer for today. So this webinar is being organized because of an MOU signed with DTE. So SoftPro India very recently signed a memorandum of understanding with the Department of Technical Education, Government of Uttar Pradesh, under which the Government of Uttar Pradesh has instructed SoftPro to organize free of cost webinars, seminars,
and courses for all the students. इसलिए ये webinar हम लोग लेकर आए हैं और future webinars भी आपके आने वाले हैं. Along with that, we are the official training partner of DTE, which means आपकी आने वाली future trainings, summer trainings, and all these courses will be delivered by Software India because we are the authorized training partner appointed by the government of the state. And that's why we have come up with this webinar जिसका आप सभी लोग हिस्सा बन चुके हैं. This is a glimpse of training at Softpro. Softpro में जब ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं होती है, जब ऑफलाइन ट्रेनिंग होती है, then this is how a class, a hall of Softpro house looks. We have such 15 to 20 batches, and every year 2,000 to 3,000 students are trained at Softpro House. With this, we also have industry academy interaction program in all over the region, which means we provide seminars, workshops, webinars, and faculty development programs in almost 200 to 250 colleges of all over the region for the students. And that's how we achieve our aim of bridging the technology gap. Now I'm telling you about PolyPrep. What PolyPrep is. PolyPrep came up last year in the year of pandemic when all the schools, colleges, and universities were closed. There was no mode of offline studying. The experts of Software came with PolyPrep, which is an artificial intelligence-based learning management system by Software India, which means if you are studying and joining a course through PolyPrep, you will not only get your certificate and a Zoom link to join a class, you will get your portal, student portal. You will get your login credentials, and when you log into PolyPrep, you will get your course and a lot more things. In the PolyPrep LMS, the PolyPrep Learning Management System, you will be getting the course content designed by software experts. You will get self-assessment tools, that is assignments and quizzes that you will be completing per day. You will get video tutorials, a video library containing lots of lectures by the experts. And the best thing is all the classes in PolyPrep are live sessions, which means during the class, if you have any query, anything, you can just write in the chat box or unmute yourself and ask that. Through PolyPrep, we aimed at minimizing the gap between offline and online class, and the best feedback that we have got from our students is through PolyPrep, they did not feel any difference between offline and online class. In 1 year of PolyPrep's existence, we have already trained and certified 10,000 students of the country on different trending technologies of their choice, which is huge. So in future, आप लोग भी PolyPrep का part बनने वाले हैं, and that's why you should know. Through PolyPrep, we provide online courses on trending technologies. We provide online summer trainings, online preparation of syllabuses, and online workshops. Also, if you don't have your system with you, you always have a smartphone, and that's why we also have PolyPrep's Android application through which you get live sessions, self-assessment tools, class recordings, tailored study material, and 24/7 tech support. Along with training, Software also caters its clients with ERP developments, mobile application development, customized application, and web applications, which means when we have clients who require certain things like ERPs, mobile applications, web applications, and whatnot, Software experts, Software developers provide these things to the clients. And these live projects that we develop for our clients are what the students are trained on. जो हमारे लाइव प्रोजेक्ट्स होते हैं, हमारे स्टूडेंट्स उन्हीं पे ट्रेनिंग लेते हैं, and which makes it a very good experience for all the students who are joining Software for their project completion training. Coming to webinar now, जिसके लिए आप सभी लोग जुड़े हुए हैं, पर आप सभी के लिए जानना बहुत जरूरी था कि वेबिनार सॉफ्टवेयर इंडिया क्यों करा रहा है, सॉफ्टवेयर इंडिया क्या है, and why you should be a part of this. So this webinar on cloud computing is very important for you all because cloud computing is the future. You all know that you don't store any data in your pen drives or memory cards now, but every data goes on the cloud. So what exactly is cloud computing? What is its future? What are its career opportunities? How can you become an expert in cloud computing technology? To explain all this, to shower his knowledge and immense experience on working with cloud computing, here is our industry expert, your speaker for today, Engineer Kumar, who will take you today's session. So now I would welcome Engineer Kumar to take over the session. Thank you, everyone. Please response in chat box if
My voice is audible to you? Okay, good. Very good. Please wait a minute. Let me share the screen. Sorry for delay, students, but now let us start. Topic is cloud computing. Okay, right. Then what is cloud computing? कोई ऐसा जो मुझे पहले से बताए, जिसको पहले से कोई आइडिया हो क्लाउड के बारे में. व्हाट इज क्लाउड? स्टूडेंट्स, आई एम सॉरी फॉर डिले. कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से ये सेशन लेट हुआ, बट नाउ माय क्वेश्चन is there anyone that can explain what is cloud? Storage data on internet. Storage of data on internet. Divyanshi Goswami, very good. Backup. और क्या है? Sir, when we can store our material online, which can be accessible from anywhere. Handing of used data. Good. Okay, students, तो एक मेरी स्टार्टिंग में सभी से रिक्वेस्ट है कि ये सेशन सभी लोग इंटरेक्टिव बनाए. आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछे और मैं इसको आंसर दूंगा. राइट? तो क्लाउड, according to you, cloud is an area where large amount of data is stored. चलो, गुड. अब मैं आपको एक कॉमन सा एग्जांपल देता हूं इंटरनेट के बारे में. जब हम इंटरनेट पे कोई भी वेबसाइट एक्सेस कर रहे होते हैं, डोंट वरी राजकिशन, अगर कोई ऐसा भी है जिसको क्लाउड के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है, वेट. आप इस सेशन में सारे कॉन्सेप्ट आपके मैं क्लियर करूंगा. एफिशिएंट वे ऑफ स्टोरिंग डेटा. वेरी गुड, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स. ऐसे रिस्पॉन्स आप लोग देते रहिएगा लास्ट तक. चलो, गुड. अच्छा, सिंपली क्लाउड कंप्यूटिंग is the delivery of computing services including servers, storage, databases, networking, software, analytics and intelligence over the internet. Very good, Divyanshu. चलो, अब मेरा एक क्वेश्चन है सभी से. कुछ लोग आसानी से इसका रिस्पांस दे पाएंगे. सर प्लीज टेल मी व्हाट फीस ऑफ समवट इन बीटेक. ये लास्ट में आप क्वेश्चंस पूछिएगा, लास्ट में आपको ये सारे आंसर्स दिए जाएंगे फीस रिलेटेड, बाकी इन सारी चीजों से. तो स्टूडेंट्स, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं. इट इज मी एंड इट इज यू. वी बोथ आर यूजिंग फेसबुक. ठीक है, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं सभी का. हम लोग क्या यूज करते हैं? फेसबुक यूज करते हैं. ठीक है, हम लोग फेसबुक यूज करते हैं. सबसे पहले डिस्कशन पे सभी की राय ले लेते हैं, उसके बाद आगे के टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे. तो यहां पर हम लोग फेसबुक पर जब कोई भी पोस्ट डालते हैं, जैसे मैंने कोई फेसबुक पर कोई पोस्ट डाली, तो क्या वो डायरेक्टली आप तक पहुंच जाती है? क्या वो जैसे मैंने पोस्ट डाली, क्या वो डायरेक्टली आप तक पहुंच जाती है? मान लीजिए मैंने पोस्ट डाली, आपका फोन ऑफ है, आप अपने फोन को ऑफ करके घर पे रिलैक्स कर रहे हो, तो जैसे मैं पोस्ट डालूंगा आपके पास फोटो पहुंचेगी? नहीं. मैंने पोस्ट डाली और पोस्ट डालने के बाद मैं ऑफलाइन हो गया. ठीक है, मैं ऑफलाइन हो गया. अब ये मुझे बताइए, जो मैंने पोस्ट डाली है, ना तो वो अब मेरे पास है, मैंने अपने फोन को फॉर्मेट कर दिया, ना वो मेरे पास है, ना ही वो अभी आपके पास पहुंचा है, क्योंकि आपने अपने फोन बंद कर रखा हुआ, आप रिलैक्स कर रहे हो. तो वेयर इज दैट पोस्ट? वो पोस्ट कहां पर है? तो हाँ, तो जो ये पोस्ट है, पोस्ट फिलहाल कहां पर है? क्लाउड पर.
तो ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता है जब हम इंटरनेट यूज कर रहे होते हैं. देयर इज समथिंग एल्स बिटवीन मी एंड यू. कुछ और भी है, और वो क्या है? इसे बोलते हैं क्लाउड. यहां पर जो भी डेटा है वो यहां पर स्टोर किया जाता है. अगर मैं इसके एग्जांपल्स की बात करूं, हाँ, तो इट इज क्लाउड. अब जो यहां पर डेटा होता है ये मल्टीपल प्रोटोकॉल्स के थ्रू डिलीवर होता है. ओके, प्लीज वेट मिनट, एक मिनट, मैं फिर से स्टार्ट करता हूं. ओके, तो यहां पर जो क्लाउड है वो एक वर्चुअल स्टोरेज एरिया है जहां पर हम कोई भी पोस्ट या कुछ, जैसे फेसबुक के एग्जाम का अगर एग्जांपल लिया जाए तो हम एक कोई डेटा स्टोर कर देते हैं क्लाउड पर. बट उस क्लाउड को ना तो हमने देखा है ना ही आपने देखा है. वर्चुअल स्टोरेज है जहां पर हमने मान लिया था कि हमारा डेटा स्टोर्ड है, और वो सिक्योरली वहां पर स्टोर्ड भी रहता है ना. अब जो सर्वर्स होते हैं वो उन्हीं में से टाइप, उसी का एक टाइप है क्लाउड सर्वर. ऐसे ही वेब सर्वर भी होते हैं, है ना शिवांगी गुप्ता. चलो, तो इट इज व्हाट क्लाउड इज इन सिंपल टर्म्स. अब इसकी के बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन कर लें. तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ए क्लाउड सर्वर इज वर्चुअल सर्वर. यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? वर्चुअल सर्वर की, है ना. तो जो ये वर्चुअल सर्वर है, रेदर देन ए फिजिकल सर्वर, हमारे लिए क्या है? इट इज अ वर्चुअल सर्वर रनिंग ऑन क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट. एक क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट में चल रहा है जहां पर क्लाउड के लिए जितने भी एसेंशियल्स हैं वो सारे के सारे उधर अवेलेबल है ना. इट इज बिल्ट एंड होस्टेड डिलीवर्ड वाया क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म. किसी भी क्लाउड सर्विस को एक क्लाउड प्लेटफॉर्म के थ्रू डिलीवर किया जाता है ओवर द इंटरनेट. आप जब भी इंटरनेट वर्ड का यूज करते हो, दैट मीन्स हम उस सर्विस को ग्लोबली, जहां पर नेटवर्क कनेक्टिविटी अवेलेबल है, वहां हर जगह एक्सेस कर सकते हैं, है ना. तो इस क्लाउड की अगर यहां पर एक बात की जाए तो यहां पर जो क्लाउड सर्वर्स होते हैं, एक्चुअली दीज क्लाउड सर्वर्स आर नॉट वर्चुअल सर्वर. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये जो क्लाउड सर्वर्स हैं ये वर्चुअल है, इनको कोई देख ही नहीं सकता. बहुत बार लोग जैसे मैं बहुत बार स्टूडेंट से मिलता हूँ, बहुत बार स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि क्लाउड ऐसा कुछ, उनकी इमेजिनेशन ऐसी होती है कि क्लाउड कुछ ऐसा होता है कि बादलों में डेटा स्टोर रहता होगा रेडियो वेव्स के फॉर्म में. किसी को ऐसा तो नहीं लगता है कि जो क्लाउड पे जो डेटा स्टोर रहता है, जैसे आपने अपने गूगल ड्राइव पे फोटोज स्टोर कर रखी हैं, फेसबुक पे जो आपने पोस्ट अपलोड कर रखी है, इट इज स्टोर्ड ऑन रियल क्लाउड्स, बादलों में स्टोर्ड है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. जिनको भी ऐसा लगता है कि अगर आपने डेटा क्लाउड पे स्टोर किया है, देन दैट डेटा विल बी स्टोर्ड एट रियल क्लाउड्स इन स्काई. नो, इट इज नॉट. ऐसा नहीं है बिल्कुल भी. आपका जो डेटा होता है वो हमारे लिए वर्चुअल सर्वर्स पे स्टोर्ड है, वर्चुअल स्टोरेज एरिया है, वो हमारे लिए है. बट ये फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं. आप जब क्लाउड पे डेटा स्टोर करते हो तो ये रियल में मल्टीपल जियोग्राफिक लोकेशंस पे ऐसे सर्वर्स होते हैं. और सर्वर्स लाइक कंप्यूटर, जैसे आपका कंप्यूटर है, आप अपने कंप्यूटर पे कोई भी डेटा स्टोर करते हो, तो आप अपने डेटा को आप अपने कंप्यूटर में, जब तक वो नेटवर्क नहीं है, आप उसके पास जा करके उसमें पेन ड्राइव लगा करके या उसमें वायरलेस डेटा ट्रांसफर करके उससे डेटा को रीड राइट कर सकते हो. ये चीज पॉसिबल है आपके कंप्यूटर में. सिर्फ ऐसा ही कंप्यूटर, सेम ऐसा ही कंप्यूटर, जैसे आपके कंप्यूटर में क्या होता है? प्रोसेसर होता है. आपके कंप्यूटर के पास क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. आपके कंप्यूटर के पास नेटवर्किंग होती है. आपके कंप्यूटर के पास हार्ड डिस्क होती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव भी हो सकती है, एसएसडी, मतलब स्टोरेज एरिया. आपके कंप्यूटर में स्टोरेज मेमोरी होती है ना. तो वो जो कंप्यूटर है आप फिजिकली एक्सेस कर पा रहे हो, तो वो आपके लिए फिजिकल स्टोरिंग डिवाइस हो गई. क्या किसी भी कंप्यूटर में विदाउट प्रोसेसर आप डेटा को स्टोर करने के अलावा रीड एंड राइट कर सकते हो विदाउट यूजिंग प्रोसेसर्स? विदाउट यूजिंग प्रोसेसर्स क्या आप रीड एंड राइट कर सकते हो?
नहीं रीड एंड राइट कर सकते ना, तो जो क्लाउड सर्वर्स होते हैं वो भी एक तरह के कंप्यूटर्स होते हैं, और वहां पर भी प्रोसेसर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, सी सारी चीजें वहां पर अवेलेबल होती हैं, और वो सारी सर्विसेज हमें इंटरनेट के थ्रू डिलीवर की जाती हैं, जिससे हम उनको एक्सेस कर सकें और उनको यूज कर सकें। ठीक है, तो ये जो क्लाउड सर्वर्स होते हैं, इनके फीचर्स की अगर मैं बात करूं, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर दैट कैन बी फिजिकल, ये आपके लिए फिजिकल भी हो सकता है, आप वहां पर जा करके भी काम कर सकते हो। आपके कंट्री में आपने सुना होगा कि आजकल अपनी कंट्री में, आप कर्नाटका में, अपनी अपने अपने आपके सभी के स्टेट्स में, आप जो भी स्टेट से हो, आपके स्टेट्स में, इवन आपके कॉलेजेस में भी ऐसे सर्वर्स होते होंगे, जैसे आपकी यूनिवर्सिटी का सर्वर हो सकता है। तो आप अपने कंप्यूटर को भी सर्वर बना सकते हो, जिसको क्लाउड मींस क्लाउड सर्विस की तरह आप किसी दूसरे पर्सन को डिलीवर कर सकते हो। दूसरा पर्सन वहां पर स्टोर डेटा को एक्सेस कर सकता है, रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, जैसे उसको जो भी उसकी अथॉरिटी, जो भी उसको परमिशंस दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग। समझ गए? तो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर दैट कैन बी फिजिकल, वर्चुअल और मिक्स ऑफ डिपेंडिंग ऑन द यूज केस, has all capabilities on premise service, enables users to process intensive workload। हाँ, यस, आप इंटेंसिव वर्कलोड मीन्स जैसे आप अपने कंप्यूटर पे काम करते हो आजकल, तो आज अपने कंप्यूटर पे जब आप काम करते हो तो आपके कंप्यूटर पे प्रोसेसिंग पावर आपके प्रोसेसर के जो प्रोसेसिंग पावर है उस पर डिपेंड करती है। लेकिन क्लाउड पर जो डेटा होता है उसका मतलब होता है कि आप जो वहां पर सर्वर्स, जो क्लाउड होते हैं, क्लाउड पे बेसिकली सुपर कंप्यूटर्स यूज किए जाते हैं, बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर्स यूज किए जाते हैं। तो वो जो पावरफुल पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं वो किसी भी डेटा को, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को बहुत कम टाइम में प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, जिस वजह से लोग अपने कंप्यूटर्स को ना यूज करके क्लाउड सर्वर पे बड़े डेटा की प्रोसेसिंग करते हैं। अच्छा, आपने कभी सुना होगा जैसे 5G टेक्नोलॉजी, 4G आज देखा जाए तो 4G टेक्नोलॉजी इनफ है, हम किसी मूवी को लाइव देख सकते हैं, हम अपने रिकॉर्डिंग, जैसे आप अभी लाइव क्लास कर रहे हो मेरे साथ, ये सारी चीजें आज पॉसिबल है 4G में। लेकिन आज लोग 5G टेक्नोलॉजी की जब बात करते हैं तो 5G से सबसे बड़ा बेनिफिट ये होने वाला है कि जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा की प्रोसेसिंग है आज, जो सिर्फ लिमिटेड एरियाज में ही हो सकती है जिनके पास हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी अवेलेबल है, लेकिन अगर यही चीज अगर 5G इंटरनेट 5G नेटवर्क के केस में बात की जाए, तो वहां पर जैसे 1 TB का कोई डेटा है, मान लीजिए अगर आपको कोई एल्गोरिथम प्रोसेस करनी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, या फिर आपको लार्ज अमाउंट ऑफ इमेजेस को प्रोसेस करना है, कोई एल्गोरिथम वहां पर रन करनी है, कोई मॉडल ट्रेन करना है आपको, है ना, तो उस केस में आपको स्टोरेज मिल गया, प्रोसेसिंग स्पीड भी मिल गई अच्छी खासी क्लाउड पर, लेकिन एक नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी, हाई स्पीड नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी सभी को रिक्वायर्ड होता है, जिस वजह से हमें 5G की नीड है। तो 5G और क्लाउड, इसीलिए ये सब ट्रेंडिंग है, सभी लोग यूज कर रहे हैं, हर जगह लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं, हर जगह जो लोग इंजीनियर्स हैं सभी लोग चाहते हैं कि इसको सीखें, इसके बारे में जानने, उसको यूज करना सीखें। ठीक है, और सिंपल सी एक जो बात है, जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि क्लाउड में आपको ज्यादातर चीजें बिल्ट इन मिलती हैं, मींस वहां पर एपीआईज मिलती हैं। एपीआईज के बारे में मैं आगे बताऊंगा। तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं मिलती, आप खुद को अगर खुद का सर्वर बनाओगे तो वहां पर बहुत सारी चीजें कॉम्प्लेक्स, आपको प्रोटोकॉल्स को हैंडल करना पड़ेगा, डेटा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, डेटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स, इस तरह के सारी प्रोटोकॉल्स को आपको खुद से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्लाउड ये सारी चीजें बनी बना दे देता है ना। तो यस, 4G अच्छा, ऐसा नहीं कि 4G से पॉसिबल नहीं है, 4G से भी पॉसिबल है, लेकिन अगर 5G होगा तो आप सोचिए कि अगर आप 1 GB डेटा आपके पास है, मान लीजिए 1 GB के इमेजेस हैं, आप क्या कर रहे हो, इमेज प्रोसेसिंग कर रहे हो, या कोई ऐसी कोई प्रोसेसिंग करनी है जैसे डीप लर्निंग या न्यूरल नेटवर्क्स पे काम करना है, इस तरह के किसी मॉडल को ट्रेन करना है। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि बहुत ज्यादा स्पीड रिक्वायर्ड होती है आपके कंप्यूटर पे, आपके कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर भी ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन अगर आप ये क्लाउड पे करोगे ना, तो क्लाउड पे अगर आपको हाई स्पीड मिल गई तो क्लाउड की प्रोसेसिंग पावर भी ज्यादा है, आपको क्या करना है, सारी चीजें जल्द क्लाउड पे अपलोड कर देनी है, और वो सारे प्रोसेस क्लाउड पे करने हैं। आज आप देखिए क्लाउड बेस्ड बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, कितने लोगों ने मैटलैब फोन में यूज किया हुआ है, जरा बताओ, मैटलैब एप्लीकेशन कितने लोगों ने फोन में यूज किया है, कोई है जिन्होंने मैटलैब फोन में यूज किया हो? यस, आप सभी लोग जानते होंगे कि मैटलैब जब आप फोन में यूज करते हो तो आपको वहां पर क्या करना होता है, आपने कोई कमांड डाली तो कमांड वो आपके फोन में प्रोसेस नहीं होती है, वो कहाँ प्रोसेस होती है,
वो प्रोसेस होती है क्लाउड सर्वर पे। तो ये जो क्लाउड पे वर्क होता है, तो इसमें आपके कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग पावर होती है वो वहां यूज नहीं होती है। तो आप इससे हाई प्रोसेसिंग कंप्यूटर की जो हाई प्रोसेसिंग की स्पीड के जो कंप्यूटर्स हैं आप उनको भी यूज कर सकते हो। चलो इसी पर थोड़ा सा और डिस्कशन कर लें। तो ऑटोमेटेड सर्विसेज आर एक्सेस्ड ऑन डिमांड थ्रू एपीआई। एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, आपका प्रोग्राम उनका एप्लीकेशन मीन क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, और उसके बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करने के लिए ये एपीआई होती है। गिव्स यूजर्स टू चॉइस ऑफ मंथली, जैसे आप कोई सर्विस लेते हो तो जैसे आपने जैसे ईएमआई का नाम सुना होगा। आप कोई भी बड़े से अमाउंट को छोटे छोटे पार्ट्स में आप ब्रेक करके उसको पे कर देते हो। तो ऐसा ही क्या होता है कि अगर आपको क्लाउड सर्विस की जरूरत है, मान लो 2 महीने तक जरूरत है, आगे जरूरत नहीं है, तो आप 2 महीने के लिए क्लाउड परचेज कर लो, एक एक महीने का चार्ज देना। अगर आपको लगता है कि तीसरे महीने को छोड़ करके चौथे महीने फिर से जरूरत है, तो जैसी जरूरत वैसे क्लाउड सर्विस को आप अपने हिसाब से ले सकते हो। इससे आपका पैसा भी बचता है ना। यूजर यूजर कैन ऑप्ट फॉर शेयर्ड होस्टिंग प्लान। शेयर्ड होस्टिंग मतलब क्या है, आप डेडिकेटेड प्लान भी ले सकते हो, शेयर्ड भी ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि हमें थोड़ा सा कम कॉस्ट में काम चलाना है और हमें बहुत ज्यादा सिक्योरिटी, यहाँ पर देखो सिक्योरिटी यहाँ पर आती है सबसे बड़ी जरूरी। तो अगर आपको लगता है कि हमारा बहुत कम कम पैसे में काम चल जाए, अभी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो आप शेयर्ड होस्टिंग प्लान ले सकते हो। अगर आप चाहते नहीं हमारा डेटा बहुत सिक्योर होना चाहिए, तो आप डेडिकेटेड सर्वर्स की तरफ मूव कर सकते हो। तो ये बेसिक डिफरेंस, ये कुछ फीचर्स हैं क्लाउड के। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर मैं जैसे इसकी बात करूं कि आप डेटा अपने फोन पे भी स्टोर कर सकते हो, लेकिन क्लाउड पे स्टोर क्यों करो। आप जब किसी भी कंपनी में काम करोगे तो ये पॉसिबिलिटी है, 100% पॉसिबिलिटी है कि वहां का जो डेटा होता है वो क्लाउड पे ही स्टोर होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ क्लाउड जरूर वो यूज कर रहे होंगे। इवन हम लोग गूगल ड्राइव तो यूज ही कर रहे हैं, ये आप सभी लोग जानते हो। तो वाई प्रिफर क्लाउड सर्वर्स, कॉस्ट इफेक्टिव मैंने बताया, जितनी जरूरत उतना आप परचेज करिए। स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी मींस आपको अभी 1 GB की स्टोरेज चाहिए, अगले मंथ में 2 GB की स्टोरेज चाहिए, फिर 1 GB स्टोरेज स्टोरेज चाहिए। तो इस तरह से जैसी आपकी डिमांड वैसे ही आप वेरिएशन कर सकते हो अपने डिमांड के अकॉर्डिंग क्लाउड सर्विसेज में, और उतना ही क्लाउड सर्वर परचेज करो, तो इससे आपकी कॉस्ट बचती है। स्केलेबिलिटी का मतलब यही है कि आप जो पे कर रहे हो उतना ही पे कर रहे हो जिसकी आपको जरूरत है। जैसा डिश टीवी में देखा ना क्या होता है, जैसे जितने चैनल्स देखोगे उतना चैनल उतना पे आपको करना पड़ेगा। हालांकि वो मिनिमम अमाउंट चार्ज करते हैं, वो एक अलग बात है। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, जैसे आपका कोई एप्लीकेशन है, आपने कोई वेबसाइट है दूसरे सर्वर पे होस्ट कर रखी है, लेकिन आप चाहते हो कि वहां पर सिर्फ आपकी वेबसाइट होस्ट है, आपको जो डेटा है वो कहीं और दूसरे क्लाउड सर्वर पे स्टोर करना है, तो उन सबको इंटीग्रेट कर सकते हो। आप अपने प्रोग्राम्स को इस क्लाउड के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। तो इंटीग्रेशन अवेलेबल है। मतलब ये नहीं कि क्लाउड आप यूज कर रहे हो गूगल का, या आप Amazon AWS का एज्योर का क्लाउड यूज कर रहे हो तो इंटीग्रेट, अब वो इंडिविजुअल हो गया, आप उसकी सर्विसेज दूसरे से इंटीग्रेट नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप उनको इंटीग्रेट भी कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा जो क्लाउड सर्वर्स हैं आजकल पॉपुलर क्लाउड सर्वर्स, इनमें से आप देखिए Amazon AWS, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, गूगल IoT कोर, IBM क्लाउड, थिंगस्पीक। तो यहाँ पर n नंबर ऑफ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स आर अवेलेबल। आप इंटीग्रेशन अगेन, ओके। तो इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन मींस अगर आपके पास एक एप्लीकेशन है जो शायद आपने अपनी प्रोग्रामिंग करके बनाया होगा, आपने प्रोग्रामिंग की पाइथन से या फिर सी लैंग्वेज से या फिर जावा से, तो आपने एक एप्लीकेशन बनाया, तो वो एप्लीकेशन आप किसी वेबसाइट पे, किसी अपने सॉफ्टवेयर पे, सिस्टम पे, कहीं पर भी यूज कर रहे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, पाइथन मतलब पाइथन भी विनोद हो गया है। तो हाँ, यहाँ पर क्या है कि जो आपने एप्लीकेशन बनाया, उस एप्लीकेशन को आप अगर इंटीग्रेट करना चाहोगे क्लाउड सर्विस से, तो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं जिससे आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को वहां से इंटीग्रेट कर सको। इट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, करेक्ट। अब कुछ क्लाउड सर्वर्स की बात करें तो जैसे Amazon AWS, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, गूगल IoT कोर। गूगल IoT कोर खासकर इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड एप्लीकेशंस के लिए है। IBM क्लाउड, थिंगस्पीक। अब इसमें मैं चाहता हूं कि आप कोई ऐसे क्लाउड सर्वर का नाम बताओ जो आप यूज कर रहे हो, ऐसी कोई क्लाउड सर्विस है जो आप यूज करते हो।
जरा मुझे अपने चैट बॉक्स में क्लाउड सर्वर्स का नाम बताओ। आप लोग कहां पर डेटा स्टोर करने के लिए क्लाउड का यूज कर रहे हो भाई आजकल? जल्दी से बताओ सभी लोग। ड्राइव यूज कर रहे हैं, जीवन, प्रतीक पारकर, AWS, गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, ड्राइव, वेरी गुड। तो दीज ऑल आर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स। ड्रॉपबॉक्स यूज करते हैं, सैमसंग क्लाउड, जी ड्राइव। हाँ, तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जिन्होंने अपना एक बहुत बड़ा सा सर्वर बना रखा है और उसके स्पेसेस को ये परचेज करते हैं। जैसे प्लॉटिंग होती है ना, आपने देखा होगा, ये जो बिल्डर्स होते हैं, बिल्डर्स क्या करते हैं, खूब बड़ी सी जमीन परचेज कर ली। बड़ी सी जमीन मतलब एक उन्होंने एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया। अब उसमें क्या करते हैं, छोटे छोटे प्लॉट्स बना देते हैं। छोटे छोटे प्लॉट्स मतलब आप जो स्पेस परचेज कर रहे हो वो स्पेस आपको वो बेच देते हैं। और इसमें फायदा क्या है, जैसे वहां पर क्या होता है कि आप उसको रेंट पे ले सकते हो, उसको आप परमानेंटली ले सकते हो। जैसी आप जैसा आप पेमेंट करोगे वैसी आपको अथॉरिटी मिलेगी, है ना। तो इसी तरह से कुछ क्लाउड सर्विसेज भी होती हैं। इनमें अगर मैं इनके टाइप्स की बात करूं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाउड सर्विसेज जो हमें क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स प्रोवाइड करते हैं, ये किस वे में प्रोवाइड कर रहे हैं, किस तरह के क्लाउड सर्विस में आपको क्या फैसिलिटीज मिलती हैं। तो यहां पर आप किसी भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो किस तरह की सर्विस में आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। IBM एक कंपनी है जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करती है, प्रिंस वर्मा। तो अच्छा, यहां पर एक डिफरेंस है कि जो ये क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो हर एक सर्विस में आपको पैसा कितना पे करना है, क्या उसी के रिगार्डिंग सर्विसेज मिलेंगी, ये अलग अलग चीजें हैं। तो उसके बेसिस पे यहाँ पर मेन 3 कैटेगरीज हैं। जिस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। आप किसी भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस ले सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट भी है। फ्री ऑफ कॉस्ट समझ लो कुछ ऐसा है जैसे गूगल हमें वन ड्राइव पर स्पेस या गूगल ड्राइव पर स्पेस हमें कितना देता है, 15 GB देता है, लेकिन उसके अलावा एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए तो आप परचेज करना पड़ेगा आपको। तो लेकिन पहली बार में सैंपल सभी को चाहिए ना, देखने की कैसा है क्लाउड, कैसी वहां पर फैसिलिटीज हैं, सभी को चाहिए ना। तो इसलिए कुछ कुछ हिस्सा वो फ्री प्रोवाइड करते हैं। फ्री से फायदा ये रहता है कि आप उनकी सर्विसेज का ये एक्सपीरियंस ले सकते हो कि आप उनको आगे जो उससे बेनिफिट लेने वाले हो, क्या उसको उतना पे करना चाहिए, ठीक है, क्या आप उसको ज्यादा बेनिफिट, उससे ज्यादा बेनिफिट ले सकते हो। तो ये सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। अदरवाइज आप फ्री सर्विसेज यूज करते रहो, है ना। तो 15 GB एक बहुत छोटा सा अमाउंट है। सर क्लाउड सिक्योर है, इस बारे में आगे मैं डिस्कशन करूंगा। क्लाउड देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं सर्विसेज बता रहा हूँ ना, इसी में मैं बताऊंगा कि कैसे क्लाउड सिक्योर होते हैं और यहाँ पर जो भी सर्विसेज होती हैं वो कैसे, वो इंक्रिप्शन के बिहाफ पे वहां पर कैसे डेटा इंक्रिप्टेड होता है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसकी टाइप्स की बात करता हूँ, फिर इस पर आएंगे, ठीक है अभिषेक। सर 4th सेमेस्टर में हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग थ्योरी सब्जेक्ट है। यस, क्लाउड देखो एक बात सभी लोग जानते होंगे, यहाँ जितने सारे कनेक्टेड हो सारे बीटेक स्टूडेंट्स हो मेरे ख्याल से। बीटेक में आप देखोगे सिविल इंजीनियरिंग किसी भी ब्रांच में जाओ, सब जगह क्लाउड सर्विस, क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कॉमन है, सभी के लिए कॉमन है ना। यस, जीमेल एक सर्विस है, बट जीमेल को एक क्लाउड के थ्रू हमें प्रोवाइड किया जाता है। एमजी आल्सो, यस। आप क्योंकि आज जैसे कंप्यूटर सभी के लिए नेसेसरी है, एसेंशियल है। कंप्यूटर्स कंप्यूटर्स क्या है, लोकल क्लाउड बोल सकते हो। कंप्यूटर क्या बोल सकते हो, लोकल क्लाउड। इसको आप ही एक्सेस कर सकते हो। और आप अगर जो हम जिस क्लाउड की बात कर रहे हैं ये ग्लोबली एक्सेस किए जा सकते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर जब हम सॉफ्टवेयर एज सर्विस की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर एज सर्विस मींस जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है वो हमें सारी फैसिलिटीज एक पैकेज में प्रोवाइड कर रहा है। एक पैकेज में सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जो फर्स्ट सेमेस्टर में है ना, वो फर्स्ट से लेकर के 8th सेमेस्टर चेक कर लो, कहीं ना कहीं तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। मैक्सिमम कितना जीबी है स्पेस जीमेल में, ये किसी को भी नहीं पता कितना जीबी स्पेस है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं क्लाउड के अगर बताऊं, तो दोस्तों आप जब क्लाउड पर डेटा स्टोर करते हो तो ये गूगल को भी नहीं पता रहता है कि आपकी जो वन ड्राइव का डेटा है वो किधर स्टोर है, ये उसको भी पता नहीं रहता है। और ये सारा डेटा जो होता है ना, वो एक ही क्लाउड पर स्टोर नहीं होता है, यहाँ मल्टीपल बैकअप सर्वर्स भी होते हैं। बैकअप सर्वर मींस अगर वहां पर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, मान लो किसी भी एक सर्वर में
कहीं किसी भी तरह की प्रॉब्लम आई, हालांकि वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देंगे कुछ टाइम के अंदर, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा। इस टाइम पर आप जो डेटा एक्वायर करोगे, डेटा रीड राइट करोगे, वो सारा का सारा दूसरे सर्वर, जो बैकअप सर्वर बैकएंड में काम कर रहा होगा वहां पर, है ना। बैकअप सर्वर तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा। वर्किंग ब्लॉकचेन, वेरी गुड। तो ब्लॉकचेन, ये क्लाउड, ये सब बहुत अच्छी चीजें हैं जो आप लोग सभी लोगों को सीखना चाहिए। खैर, हम लोग क्लाउड पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट इज प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। यहां पर क्या होता है कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पर कुछ चीजें आप चेंज भी कर सकते हो। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में, जैसे इसका मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे ईमेल सर्विस है, आप या ड्राइव यूज करते हो, गूगल ड्राइव यूज करते हो ना सभी लोग, सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये जो सर्विसेज हैं, अगर कोई भी आपको प्रोवाइड करता है, जैसे गूगल ड्राइव, तो गूगल ड्राइव का जो व्यू है ना, वो आप चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है, सॉफ्टवेयर ही उसने प्रोवाइड कर दिया आपको, सारी चीजें इंटीग्रेट करके दे दी, आपको कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। तो जैसा उसका व्यू है, तो जो कस्टमाइजेशन वहां अवेलेबल है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू, उतना ही कर सकते हो। इसके अलावा बाकी आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस क्या होता है? प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस मींस, जब हमें कोई क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, तो वहां पर हम डेटाबेसेस, वेब सर्वर, डिप्लॉयमेंट टूल्स, इन सबको चेंज कर सकते हैं। हम उसका व्यू चेंज कर सकते हैं, कहां पर डेटा को डिस्प्ले करना है, ये सारी चीजें हम चेंज कर सकते हैं, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, दैट मींस क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हमें पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही प्रोवाइड कर देगा, जहां पर हम ऑपरेटिंग सिस्टम, वहां जो वर्चुअलाइजेशन है, ये सारी चीजें हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो कितना कंट्रोल आपको दिया जाता है, दैट डिपेंड्स ऑन टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। आपको कंट्रोल ज्यादा चाहिए तो पे ज्यादा करना पड़ेगा, इसके लिए क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर है सर्विस। आपको कंट्रोल बहुत कम चाहिए तो आपको पे कम करना पड़ेगा, इट इज सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, है ना। तो यहां पर देखो, कंट्रोल के बिहाफ पे, यहां पर देखिए वैशाली गुप्ता, यहां पर आपको समझ में आएगा, क्लियर समझ में आएगा। जैसे एंड यूजर्स, यहां पर आप देखिए, ये जो डायग्राम है इसमें आपको क्लियर समझ में आएगा। ये यूजर्स होते हैं, इस टाइप की यूजर्स। एंड यूजर मींस, जैसे हम लोग अगर सिर्फ और सिर्फ गूगल ड्राइव यूज करते हैं, हम लोग सिर्फ फेसबुक चलाते हैं, हमें कोई मतलब नहीं किधर डेटा स्टोर कर रहा है, क्या उसका विजुअलाइजेशन है, कैसे चेंज करें, ये कुछ हमें चेंज नहीं करना, हमें पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर चाहिए। तो उस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में लोएस्ट कंट्रोल यूजर के पास होता है, और ये होते हैं एंड यूजर्स। आप किसी को सर्विस प्रोवाइड नहीं करते। आप बताओ, आपने जीमेल परचेस किया, तो आप खुद यूज करोगे ना, कि आप भी जीमेल की सर्विस किसी दूसरे को प्रोवाइड करोगे? नहीं करोगे ना। तो यहाँ पर जो एंड यूजर्स हैं, वो हम लोग होते हैं, जब हम सिर्फ और सिर्फ गूगल ड्राइव यूज कर रहे होते हैं। इसमें जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आजकल अवेलेबल हैं, जैसे जीमेल, ट्रेलो, सेल्सफोर्स सीआरएम का शायद कम लोग नाम जानते होंगे। सेल्सफोर्स सीआरएम बेसिकली कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है। इसमें आपने कभी और देखा होगा, किसी भी आप वेंडर से कोई भी चीज परचेज करो, या किसी भी वेबसाइट पे आपने कुछ भी चीज परचेज करी, तो फिर वो क्या करते हैं, वो टाइम टाइम पर आपको ईमेल्स देते रहते हैं। जैसे आप 1mg वेबसाइट पे गए, आपने 1mg से कोई मेडिसिन परचेज करी, तो 1mg टाइम टाइम पर आपको ईमेल्स भेजती रहेगी कि आपको ये परचेज करना चाहिए, इस टाइम सर्दियां चल रही हैं, तो सर्दियों के टाइम पर बुखार में सबसे ज्यादा ये मेडिसिन सबसे ज्यादा फायदेमंद है। तो ये जो मेल्स आते रहते हैं ऑटोमेटिक, आपने कभी देखा है मेल्स आपके पास ऐसे आते रहते हैं? हाँ। तो जो ये मेल्स होते हैं, या वहां कोई इंडिविजुअल बैठ करके कोई आपको मेल नहीं करने वाला है, ये ऑटोमेटेड सिस्टम होता है। तो अगर आप जैसे सेल्स फोर्स सीआरएम को यूज करते हो, तो सेल्स फोर्स सीआरएम एक बिल्ट इन सॉफ्टवेयर है, ये बना बनाया है। आप इसको यूज करिए, आपको यहाँ बस अपने हिसाब से चीजें एडजस्ट कर लेनी है। जैसे आप गूगल ड्राइव पर डेटा स्टोर करते हो, क्या सर्विसेज कैसे क्या लगानी है, ऐसे एड ऑन्स लगा लिए, ये सब आपने कर लिया। हाँ, मैसेजेस भी आते रहते हैं, ये सब कुछ ये सीआरएम करते हैं। सीआरएम एक सॉफ्टवेयर होता है। तो ये सेल्स फोर्स सर्विसेज क्या हो गई, एंड यूजर्स में आती है। हम लोग अब किसी को क्लाउड सर्विस प्रोवाइड नहीं करने वाले, हाँ उसका यूज करेंगे, लेकिन हम लोग किसी को ये सर्विस आप प्रोवाइड नहीं करेंगे। दैट इज वाई वी आर, सीआरएम का फुल फॉर्म है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर से रिले आपने किस 1mg से प्रोडक्ट परचेज किया, तो आप उसके अब कौन हो गया, रिलेटिव। ठीक है। तो वो हमेशा आपको, हाँ, आपसे रिलेशन बनाए रखने के लिए, आपसे कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ आपको मेल्स करता रहेगा। होली होगी तो होली पे विश करेगा, ईद होगी तो ईद पे विश करेगा, है ना। अन अकेडमी की आती है ना, अरे यही तो बात कर रहा हूँ। तो ये सीआरएम के थ्रू होता है।
और हर एक कंपनी का अपना सीआरएम होता है। कुछ लोग सीआरएम अपना खुद से डेवलप करते हैं। इफ यू वांट टू डेवलप योर ओन सीआरएम, इफ यू आर want to develop your own CRM, then you need product as a service. आप अब किसी कंपनी का सीआरएम परचेज नहीं करने वाले, आप अपना पूरा खुद सॉफ्टवेयर डिजाइन करोगे। मैं देखो सीआरएम के एग्जांपल से ये तीनों चीजें बताता हूं। आप अपना खुद से सॉफ्टवेयर बनाओगे, मतलब यू आर सॉफ्टवेयर डेवलपर। अब देखो क्लाउड ऐसी चीज है ना, इसको नॉन सॉफ्टवेयर डेवलपर भी यूज करते हैं और सॉफ्टवेयर डेवलपर भी यूज करते हैं। तो अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं तो आप उसमें यहाँ पर जैसे गूगल ऐप इंजन हो गया, इसके अलावा देखो यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ माइक्रोसॉफ्ट एज्यूरो लिखा हुआ है, तो माइक्रोसॉफ्ट एज्यूरो इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, प्रोडक्ट एज सर्विस, दोनों सर्विसेज प्रोवाइड करता है। हालांकि यहाँ मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आप यहाँ समझ लीजिएगा। तो जो सर्विसेज हमें सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए हमें एक एरिया प्रोवाइड करती हैं, बट जो हमारे यूजर्स होंगे वो उनको पता नहीं चलेगा कि वो AWS से कोई भी चीज डाउनलोड कर रहे हैं। जो लोग यहाँ पर पॉलीप्रेप पर जो कोर्सेज कर चुके होंगे, जैसे पॉलीप्रेप हमारा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, तो जब आप असाइनमेंट्स क्विजेज वगैरह करते हो ना, तो शायद कभी आपने ध्यान दिया होगा कि यार, या फिर वहां से कुछ भी डाउनलोड करते हो तो वो एक रीडायरेक्ट होता है दूसरी वेबसाइट पे थोड़ी देर के लिए और तुरंत डाउनलोड भी हो जाता है। लेकिन अगर उसी टाइम अगर आप देखो ना उस इंस्टेंट पे, तो आपको दिखाई पड़ेगा वो वेबसाइट जो थी aws3.something.com ऐसे कुछ थी। ये बहुत थोड़ी देर के लिए आता है, तुरंत वो जो फाइल होती है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाती है। या बहुत सारी वेबसाइट से आप कुछ डाउनलोड करते हो तो तुरंत एक नया टैब ओपन होता है थोड़ी देर के लिए और डाउनलोडिंग स्टार्ट। तो इसका मतलब क्या है, उनकी वेबसाइट कहीं और है, डेटा कहीं और स्टोर रखा है। ऐसी इवेंट कितने लोगों के सामने हुई है, कभी किसी के साथ हुआ कि जब कुछ डाउनलोड करते हो तो उसकी उसी टाइम एक नया पेज थोड़ी देर के लिए ओपन होता है और वो क्लोज भी हो जाता है? कभी हुआ है किसी के साथ? हाँ, गुड। तो ये जो चीज है ये बेसिकली प्रोडक्ट एज सर्विस के थ्रू की जाती है। तो वहां पर वो प्रोडक्ट एज सर्विस उस प्लेटफॉर्म्स को, Amazon AWS को या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के, हाँ मूवीज डाउनलोड करते होगे, हाँ यही सारी चीजें। तो ये सब प्रोडक्ट एज सर्विस किसी ना किसी प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे होते हैं। चलो, अब यहाँ पर अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस में होता क्या है, जब आप प्रोडक्ट एज सर्विस परचेज करते हो तो आप वहां पर डेटा स्टोर करते हो, डेटा को इंटीग्रेट कर सकते हो, ये सब कुछ कर सकते हो। लेकिन वहां पर जो सॉफ्टवेयर यूज किए जा रहे हैं, जो उसके वहां पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जा रहा है, तो ये सारी चीजें चेंज नहीं कर सकते आप। जैसे आपने कभी सुना होगा जो लाइनक्स है, आजकल मोस्ट सर्वर्स लाइनक्स बेस्ड हैं, वो लाइनक्स सॉफ्टवेयर लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, क्योंकि उसके यूजर कम है तो इसलिए उसमें हैकिंग बहुत टफ होती है, वहां पर हैकिंग बहुत टफ होती है। तो अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे अपना ऑपरेटिंग सिस्टम खुद का इंस्टॉल करना है, मैं सारी सर्विसेज जो वहां चल रहा हूँ उसमें ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल मुझे चाहिए, तो दैट मीन्स यू नीड टू यूज इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, है ना? तो इधर आप आईटी एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हो, जब आप किसी दूसरे को ऐसी सर्विस, जैसे आपको किसी दूसरे को सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। जैसे मान लीजिए आप अपनी होस्टिंग सर्विसेज किसी को प्रोवाइड करते हो, ठीक है? आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो? अपने अपने आप खुद को, मान लीजिए आप डोमेन सर्विस या जो वेबसाइट्स होती हैं किसी होस्टिंग सर्विस पे की एक जगह, उसकी स्पेस को लेकर के वहां पर सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करती है ना। तो अगर आप उस तरह के होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर हो, देन यू नीड इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। अब यहाँ पर आप प्रोडक्ट एज ए सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो किसी दूसरे को, है ना? तो दैट वाज क्विक ओवरव्यू ऑफ टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। इसी को थोड़ा सा अगर मैं एलोबरेट करके दिखाऊं ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें कौन सी तरह के पैकेज में आपके पास कितने कंट्रोल्स होते हैं, आपके पास क्या होता है, ये सब यहां से आप दे सकते हो। अगर आप सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस की बात करो, तो ना तो एप्लीकेशन का कंट्रोल आपके पास होगा, एप्लीकेशन भी सर्विस प्रोवाइडर देगा आपको। कभी देखा है कि गूगल ऐप जो मेल सर्विस है ना, मेल सर्विस आप किसी दूसरी एप्लीकेशन से कर रहे हो, नहीं होता है ना। वो मेल के लिए जीमेल ही यूज करेगा, गूगल का मेल जीमेल से ही जाता है। वहां पर आप डेटा को कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब डेटा आप स्टोर करना है, डेटा को रीड राइट, लेकिन उसका इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन ये सब आप नहीं कर सकते। मिडलवेयर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर पे अभी आता हूँ, ओके? अभी मैं एक्सप्लेन कर दूं, फिर इसके बाद चैट चैट की रिस्पॉन्स करता हूँ। तो यहाँ पर एक मिनट,
यहाँ पर जो डेटा है, रन टाइम, मिडलवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्चुअलाइजेशन, ऑल थिंग्स आर मैनेज्ड बाय वेंडर। वेंडर मींस जो क्लाउड सर्विस हमें प्रोवाइड कर रहा है। जैसे गूगल की क्लाउड सर्विस परचेज करते हो तो यहाँ पर वेंडर कौन हुआ? गूगल। तो सारी चीज, सारी थिंग्स जो भी हैं वो सब कौन कंट्रोल करेगा? गूगल, है ना। इसके अलावा अगर बात करें प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस की, तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में आप अपना एप्लीकेशन बना सकते हो। जैसे पॉलीप्रेप एप्लीकेशन है तो ऐसा एप्लीकेशन आप बना सकते हो, डेटा आप मैनेज कर सकते हो। इसके अलावा जो ऑपरेटिंग सिस्टम, रन टाइम एप्लीकेशन, मिडलवेयर्स, नेटवर्किंग, स्टोरेज, सर्वर्स, वर्चुअलाइजेशन, ऑल थिंग्स विल बी मैनेज्ड बाय वेंडर, राइट। नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस है, यहां पर आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं? यहां पर आपके देखो, ऐसे ही देखो, सिक्योरिटी जो होती है ना, सिक्योरिटी एक दो लोगों के बीच में एक क्या है? एग्रीमेंट है कि उसने बोला कि हम डेटा लीक नहीं करेंगे, ये हमारी टर्म एंड कंडीशंस हैं और हमने मान लिया। लेकिन वो डेटा इंक्रिप्टेड होता है और रेयरली वो किसी दूसरे को यूज करने देता है, क्योंकि जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो ऐसा इसलिए नहीं करती क्योंकि उनकी ब्रांड वैल्यू की कीमत बहुत ज्यादा होती है। लेकिन अगर कोई छोटी कंपनी है, ज्यादा पॉपुलर नहीं है, तो वो ऐसा कर सकती है कि हमारे डेटा को वो रीड कर लें। तो इस तरह के केसेस में लोग क्या यूज करते हैं? जब उनके पास हाई सिक्योर्ड डेटा होता है, वो चाहते हैं किसी को ज्यादा वो, जैसे किसी कंपनी के क्लाइंट्स हैं, अब कंपनी के क्लाइंट्स बिलियंस क्लाइंट्स हैं, मिलियंस क्लाइंट्स हैं, तो वो कभी नहीं चाहेगा ना कि किस क्लाइंट ने हमसे क्या परचेज किया था, ये चीज इंफॉर्मेशन किसी दूसरे को मिले। तो वो लोग चाहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस। उसमें क्या होता है कि उनका डेटा उनके हिसाब से ये कंट्रोल होगा, एप्लीकेशन उनका होगा, रन टाइम एप्लीकेशन, मिडिलवेयर एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑल थिंग्स विल बी मैनेज्ड बाय यू, आप मैनेज करोगे। तो ये यहाँ पर क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल आपको प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होगी, जो आपकी सिक्योरिटी है वो आप ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो, है ना। तो ये तो हो गए मेन टाइप्स, जहां पर हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस की बात कर लेते हैं, प्लेटफॉर्म एज सर्विस की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर सर्विस की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बहुत बड़ी फर्म है और आप चाहते हो कि आप सारी चीजें खुद ही मैनेज करो, आपको किसी के ऊपर जरा भी ट्रस्ट नहीं है, तो आपको पैसा ज्यादा पे करना पड़ेगा और आप एक पैकेज्ड सॉफ्टवेयर के फॉर्म में सारी चीजें परचेज कर सकते हो। मतलब ऐसी ऐसी सर्विस जिसमें आप सारी चीजें आप मैनेज करोगे। आपका स्टोरेज एरिया कहां पर है वो आप डिसाइड करोगे, नेटवर्किंग भी आप डिसाइड करोगे, वहां पर सर्वर्स जो होंगे वो भी आप डिसाइड करोगे, आपके कंट्रोल में वर्चुअलाइजेशन होगा, आपके कंट्रोल में ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, मिडिलवेयर्स जो वहां पर, जैसे आप अपने कंप्यूटर पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज करते हो ना, ऐसे ही रन टाइम एप्लीकेशंस वो आप मैनेज करोगे, डेटा आप मैनेज करोगे, एप्लीकेशंस किस तरह के एप्लीकेशन पे डेटा व्यू कराना है, कैसा इंटरफेस होना चाहिए, एवरीथिंग भी विल बी मैनेज्ड बाय यू। तो ये डिफरेंट है, इसको बड़े आईटी सिस्टम्स जो आईटी कंपनीज होती हैं वो यूज करती हैं, और इसमें सबसे ज्यादा कंट्रोल एंड सिक्योरिटी होती है ना। तो इफ वी वांट टू लर्न क्लाउड कंप्यूटिंग देन हाउ कैन वी लर्न, इस बारे में मैं आपको लास्ट में सभी के आंसर्स दूंगा। जैसे कुछ बच्चे ट्रेनिंग से रिलेटेड, फीस से रिलेटेड ये सब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसके लिए सर आपको लास्ट में सब हर तरह के क्वेश्चंस के आंसर देंगे। ओके, तो मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे थिंगस्पीक। तो डेटा विजुअलाइजेशन यहाँ पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो यहाँ पर डेटा विजुअलाइजेशन भी प्रोवाइड करता है, आप वहां पर डेटा स्टोर कर सकते हो और इसको अपने किसी भी एप्लीकेशन में यूज कर सकते हो। तो एक छोटा सा मैं डेमो दे देता हूँ क्या। यहाँ पर जैसे मैंने बताया था ना कि एपीआई क्या होती है, एपीआई का मैंने नाम लिया था, व्हाट इज एपीआई। तो इस तरह की जो चीजें हैं, आप रियल में अगर देखना चाहते हो तो वेट मिनट में शेयर द स्क्रीन। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे एक में सिंगल प्लेटफॉर्म, ऐसे बहुत सारे एन नंबर प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हो, वहां पर आप लॉग इन कर सकते हो। ये खासकर आईओटी एप्लीकेशंस के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें अगर आप देखो तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ एपीआई क्या होती है, कैसे आप इसको इंटीग्रेट करते हो। तो अगर आप किसी डेटा को यहाँ पर आप स्टोर कर रहे हो, तो उस डेटा को किसी दूसरे एप्लीकेशन से अगर आप कंट्रोल करना चाहते हो, तो यहां पर आपको एपीआई कीज मिलती हैं। ठीक है, एपीआई मींस एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस।
ठीक है, स्क्रीन नॉट विजिबल, स्क्रीन विजिबल है सभी को? गुड, वेरी गुड। तो मैं आपको एपीआई से यहाँ पर दिखाता हूँ कि आप यहाँ पर एपीआई का कैसे यूज कर सकते हो। तो जो ये एपीआई कीज हैं, ये यूनिक एपीआई कीज होती हैं जो आपके पर्टिकुलर क्लाउड के किसी पर्टिकुलर डेटाबेस में एंट्री करेंगी। ये यूनिक होते हैं। आप, मैं जैसे, हालांकि ये पब्लिक है इसलिए मैं इसको आपसे इसको शेयर कर रहा हूं, लेकिन आप इस तरह की जो एपीआईज होती हैं ये प्राइवेट होती हैं, आप इनको किसी को शेयर नहीं करते जब तक आप चाहते हो कि ये सिक्योर रहें। ठीक है, और ये क्या है, रीड, कुछ भी डेटा किसी भी पर्टिकुलर जगह पर आपको रीड करना है, राइट करना है, तो ऐसे मल्टीपल एपीआई कीज होती हैं। ऐसे होती है रिक्वेस्ट। अब रिक्वेस्ट क्या होता है? तो एपीआई रिक्वेस्ट बेसिकली वो रिक्वेस्ट होती है जिसका यूज करके किसी पर्टिकुलर डेटा को आप किसी सर्वर पर स्टोर करते हो। दीज आर रिक्वेस्ट। ओके, अगर यहाँ पर देखो रीड, रीड रिक्वेस्ट, राइट रिक्वेस्ट, तो इस तरह की मल्टीपल रिक्वेस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं और इनको आप अपने किसी एप्लीकेशन से इंटीग्रेट कर सकते हो। चलो आप बताइए, तो यहाँ पर मैं पाइथन से इसको इंटीग्रेट करके दिखाऊं? गुड, चलो मैं इसको पाइथन से इंटीग्रेट करके दिखाता हूं। सबसे पहले मैं अपने चैनल को क्लियर करता हूं। तो यहां पर जो हमारे पास ये व्यू देखो, ये एक टेम्पररी आपको एक व्यू भी प्रोवाइड करता है जिससे आप डेटा को देख सको, आपके डेटाबेस में किस तरह का डेटा कैसे स्टोर्ड है। तो ये सारे जो आप यहाँ पर देख रहे हो, ये सब कुछ यहाँ पर ऑनलाइन है। ये आपका थिंगस्पीक के क्लाउड, वी डोंट नो पाइथन, मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूं, मैं आपको पाइथन नहीं सिखा रहा हूं। अगर आप सीखना चाहते हो तो ये सब चीजें बाद में आपको सर रिस्पॉन्स करेंगे, तो वहां से आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज किस वे में कहां से कैसे सीखें, सब मिल जाएगा। बट यहाँ पर मैं एक छोटा सा आपको डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहता हूँ, हाउ टू स्टोर डेटा एट दिस क्लाउड सर्वर, हाउ एपीआई वर्क्स। एपीआई मीन्स एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, हाउ इट वर्क्स, ये कैसे काम करती है। चलो मैं दिखाता हूँ। आई मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ आईडीएलई। अगर आप पाइथन की बात करो तो पाइथन में आइडियली आप यूज कर सकते हो, एक जीयूआई है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का, है ना। तो इसमें हम लोग एक छोटी सी स्क्रिप्ट लिखते हैं। तो देखो पाइथन बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इसीलिए मैंने पाइथन का ऑप्शन लिया। ओके, हाँ, पाइथन, एनाकोंडा, इस तरह के मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप आईडीज अवेलेबल हैं जहां पर आप पाइथन की प्रोग्रामिंग कर सकते हो। तो मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूं। तो अगर आप पाइथन में प्रोग्राम करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड रिक्वेस्ट। आपको पाइथन, भाई पाइथन क्यों पॉपुलर है? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं। ये मैं नहीं कहता हूँ, जो इसकी कम्युनिटी है उसके अकॉर्डिंग जो सबसे ज्यादा लाइब्रेरीज किसी भी अगर लैंग्वेज में अवेलेबल है, दैट इज पाइथन। तो पाइथन में रिक्वेस्ट मॉड्यूल अवेलेबल है जिसका यूज करके आप किसी डेटा को राइट कर सकते हो। अच्छा, अभी आप यहाँ पर देखो, क्या यहाँ पर कोई डेटा आपको शो कर रहा है? नहीं, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आ रहा है यहाँ पर है क्या। ये तो एक फील्ड टाइप का चार्ट दिख रहा है, इसमें कुछ है नहीं। बट इफ यू वांट टू पब्लिश डेटा एट दिस क्लाउड सर्वर, देन आपको क्या करना पड़ेगा? यू नीड एपीआई। एपीआई एपीआई रिक्वेस्ट आपको चाहिए। आपको क्या चाहिए? एपीआई रिक्वेस्ट। एपीआई रिक्वेस्ट कौन प्रोवाइड करेगा? यस, वो ब्लैंक चार्ट है बट वहां पर हम कुछ डेटा शो कराएंगे। अब मुझे जल्दी से बताओ, एपीआई रिक्वेस्ट कौन प्रोवाइड करता है? ये प्रोग्रामिंग हमारी है। बट इफ वी वांट टू स्टोर डेटा टू क्लाउड सर्वर, एट क्लाउड सर्वर, तो उसके लिए हमें एपीआई चाहिए, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। और एपीआई प्रोवाइड कौन करेगा? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। एपीआई कौन प्रोवाइड करेगा? यस, ओ वेबसाइट। एपीआई कौन प्रोवाइड करता है? अब जल्दी से ये क्वेश्चन, यस, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। कौन प्रोवाइड करता है? क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। अच्छा एक बात ये बताओ, अब जो एपी, हाँ, हु ओन क्लाउड है, गुड।
अब यहाँ पर जो क्लाउड हमें प्रोवाइड करता है, हमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थिंगस्पीक को कॉल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, थिंगस्पीक को कॉल करना पड़ेगा कस्टमर केयर पे कि भैया हमारे एपीआई, हमारे क्लाउड की एपीआई बताओ, ऐसा करना पड़ेगा? नहीं, मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर एपीआई कीज ऑप्शन है, एपीआई कीज सेक्शन में जाइए और आप देखिए, अगर आप एक सिंपल क्लाउड पर डेटा राइट करना चाहते हो तो इस तरह की रिक्वेस्ट आपको यहाँ बिल्ट इन मिल जाती हैं। आपको यहाँ से रिक्वेस्ट पिक करनी है, दिस रिक्वेस्ट, और आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अब व्हाट इज दिस रिक्वेस्ट? This request to store data at this channel in this field 1, और क्या स्टोर करना है? 0। स्टोर 0 at field 1 at this channel। ये एपीआई रिक्वेस्ट एक एपीआई की है जो यूनिक होती है सभी चैनल्स के लिए, ठीक है। तो यहां पर हम 0 स्टोर नहीं करना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि यहां पर 1000 स्टोर कर दूं। क्या स्टोर कर दूं? सॉरी, 100 स्टोर कर दूं। तो अगर आप इस तरह से 100 स्टोर करना चाहते हो, कुछ भी ऐसा डेटा स्टोर करना चाहते हो, तो उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, ऐसे एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करनी है। दिस इज व्हाट स्ट्रिंग। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैरेक्टर्स का सेट इज कॉल्ड स्ट्रिंग। तो हमने यहां पर एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की जहां पर हमने एक यस जीवन नाउ। अब जो हम लोग किसी भी क्लाउड सर्वर डेटा रीड और राइट करते हैं, तो यहाँ पर जो टेक्निकल टर्म है, टेक्निकल टर्म इज गेट और पोस्ट। क्या करना होता है? गेट करना होता है या पोस्ट करना होता है। तो यहां पर आपको एक स्टेटमेंट लिखना है, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, व्हाट डू यू वांट टू पोस्ट, एपीआई अंडरस्कोर रिक्वेस्ट। ओके, तो ये है वो रिक्वेस्ट जो आपको पोस्ट कर देनी है। अब जो लोग कहते हैं सर पाइथन मुझे सिखाइए, ये प्रोग्राम इतना सिंपल है, इसको आप एक ही बार में याद कर सकते हो, इतना तो आप याद ही कर लोगे। वन नाइट फाइट अगर करने वाले हो तो उनके लिए तो एक सेकंड का काम है ये। ओके, छोटा सा प्रोग्राम है, इसीलिए हम लोग, अब मैं इसको स्टोर करता हूं, मैं इसको स्टोर कर देता हूं। थिंग्स 01 के नाम से मैंने इसको, थिंग्स 01 के नाम से मैंने इसको स्टोर किया। इस स्क्रिप्ट को रन करना है, कहां से रन करते हैं? रन में जाकर के रन मॉड्यूल। तो जिन्हें पाइथन आती है या जिन्हें वेट ए मिनट, प्लीज वेट ए मिनट, वेट ए मिनट। यहां पर आपको पाइथन ओपन करना है और ये आपका प्रोग्राम है। ओके, नाउ यू नीड टू स्टोर दैट प्रोग्राम, कंट्रोल एस, और डेस्कटॉप पे किस नाम से स्टोर किया जाए इसको? ओके, कहां पे स्टोर करते हैं? डेस्कटॉप पे। ओके, यहां मैंने स्टोर किया। नाउ रन दिस प्रोग्राम, रन करिए और देखिए देखिए सेंड ओके लिख के आया। नाउ कम टू दिस चैनल एंड प्राइवेट व्यू ओपन करिए आप। यहां पर आपको एक डॉट दिख रहा है, दिस इज व्हाट ए वैल्यू इज 100 सेंट बाय पाइथन प्रोग्राम। अब आपको ये समझ में आएगा हाउ एपीआई वर्क्स इन क्लाउड सर्वर। एपीआई कैसे अब देखो, जो प्रोग्रामिंग करनी होती है ना क्लाउड की, वो किसी ना किसी लैंग्वेज का यूज करके उसका इंटीग्रेशन किया जाता है किसी ना किसी क्लाउड सर्विस, क्लाउड प्लेटफॉर्म के साथ। और कैसे इंटीग्रेशन करना है, ये जो इंटरफेसेस हैं ये कौन प्रोवाइड करेगा? क्लाउड। ये जो 100 वैल्यू है ये हमने इंटरनेट पे भेजी हुई है, आप इसको पब्लिकली आप भी देख सकते हो। जैसे अगर आप चाहते हो कि ये बात, मैं ये चीज आप भी देखें, तो मैं आपको एक लिंक शेयर करता हूं, आप भी इस लिंक को ओपन करके देख सकते हो। व्हाट इज पोस्टेड, इट इज 100। दोबारा से रन करूं मैं इस प्रोग्राम को, देखो
मैं 100 ना पोस्ट करके यहाँ पर मैं क्या पोस्ट करता हूँ 200। देखो बस ये वैल्यू चेंज करनी पड़ती है। अब इसमें प्रोग्रामिंग, मल्टीपल प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स और भी यूज कर सकते हैं, जिसका यूज करके आप अपने प्रोग्राम को और सिंप्लीफाई कर सकते हो। देखो लाइव डेटा अपडेट देखना है यहाँ पर, मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, देखो दिख गया आपको 100 और 200। तो ये सब जो अभी जो डेटा दिख रहा है ना, इसको बस आप विजुअलाइज कर सकते हो। इसमें आप टेक्स्ट, कैरेक्टर्स, जो भी आप सेंड करना चाहते हो आप ये सारी चीजें सेंड कर सकते हो। जो मैंने आपको लिंक दिया है ना, वहां पर भी आपको ये डेटा दिख रहा होगा। एज दिस चैनल इज पब्लिक, दिख रहा है ना सभी को? ओके, दिस इज व्हाट एपीआई इज, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस इज। तो मैंने एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस का ये आइडिया दिया कि जैसे जो क्लाउड है वो एक अलग चीज है, वो किसी और ने डेवलप किया है। प्रोग्राम्स कौन डिजाइन करता है? आप डिजाइन करोगे। आप इंटीग्रेट कैसे करोगे? तो एपीआई चाहिए। एपीआई क्या होती है? फुल फॉर्म आपने बहुत बचपन में पढ़ा होगा कंप्यूटर्स में, लेकिन यहां पर आपको अब समझ में आया होगा एपीआई कैसे वर्क करती है ना? तो दैट वाज लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वेबिनार। अब आप लोग अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। सर्टिफिकेट कब तक मिलेगा? सर्टिफिकेट का लिंक आपको लास्ट में मिलेगा, जिस पर आप अपने डिटेल सबमिट करके सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब मुझे एक बात ये बताओ, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर हाउ एपीआई वर्क्स एंड हाउ दीज प्लेटफॉर्म्स कैन बी यूज्ड? अब मैं क्लाउड के स्कोप की बताऊं। मैंने स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया, जैसे आप कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हो। देखो मैं आपको एक छोटी सी चीज और बता देता हूँ। क्लाउड के एप्लीकेशंस, जैसे आज इसका जो फ्यूचर स्कोप है, वाई मल्टी more people are using cloud and why all are interested to learn cloud services? क्यों सारे लोग इंटरेस्टेड हैं, क्यों सारे लोग इस तरफ भाग रहे हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि आज जो हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, आज जो हम अपने कंप्यूटर्स यूज करते हैं, हमारे कंप्यूटर्स स्लो है। ओके, जिनको पीडीएफ चाहिए प्लीज वेट ए मिनट, मैं आपको भी एक मैं आपको एक मैं लास्ट में कांटेक्ट नंबर और ये सब शेयर कर दूंगा, जिसका यूज करके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ठीक है? तो नाउ अगर मैं इसकी फ्यूचर स्कोप की बात करूं, जैसे हम लोग दोस्तों, आपने सभी ने देखा होगा कि अगर आप अपने किसी कंप्यूटर की बात करो तो कंप्यूटर में आप सारे एप्लीकेशन को रन नहीं कर पाते। सारे एप्लीकेशन को रन इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि कोई एप्लीकेशन बहुत ज्यादा हैवी है, जिस वजह से वो रन नहीं कर पाते। तो मैटलैब, जैसे मैंने मैटलैब का एग्जांपल दिया, तो मैटलैब हैवी सॉफ्टवेयर है, लेकिन आप उसको क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू यूज कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप, यस, जो इसको भी चाहिए मुझे मैसेज करना, मैं भेज दूंगा। कॉन्टेक्ट नंबर लास्ट में मिलेगा, लेकिन अभी मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनो। क्लाउड में आपको लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोरेज तो मिलता है, बट हाई प्रोसेसिंग पावर भी मिलती है, जो आपके लोकल सिस्टम्स पे अवेलेबल नहीं है। आज आप लोग गेम्स प्ले करते हो ना, सारे लोग अपने फोन में गेम जब खेलते हो, तो आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे क्लाउड बेस्ड गेम आते हैं, पता नहीं चलता, लेकिन उसको ऑनलाइन गेम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑनलाइन गेम। वहां पर क्या होता है, वहां जो गेम के बिहाइंड द सीन प्रोसेसिंग हो रही होती है, वो हमारे फोन पे नहीं हो रही है। वो कहाँ हो रही है? आपने जैसे लाइट एप्लीकेशन देखे होंगे, बहुत सारे क्या होते हैं, लाइट एप्लीकेशन होते हैं। जैसे आप ट्विटर का एप्लीकेशन यूज करो, और ट्विटर को आप अपने फोन में एक यूआरएल के थ्रू इंस्टॉल कर लो, तो ट्विटर क्या करेगा? आपके डेटा को अपने फोन में स्टोर, आपके फोन में स्टोर नहीं करेगा, वो डेटा क्लाउड पे स्टोर करेगा। लेकिन आप उसको बहुत आसानी से व्यू कर पा रहे होते हो। गेम्स आप देखते हो, गेम्स आप जब प्ले करते हो, तो वो गेम्स आपके कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग पावर है उसको कम यूज करते हैं। ज्यादातर जो प्रोसेसिंग होती है वो सारी की सारी कहाँ यूज हो रही होती है? वो क्लाउड पे हो रही होती है। ऐसे ही आप देखो बहुत सारे एप्लीकेशन, जो बहुत सारी वेबसाइट्स आती हैं। जैसे मैं एक सिंपल सी वेबसाइट बताऊं, एक सिंपल सी बात बताऊं, तो जैसे आप लोगो, जैसे लोगो मेकिंग वेबसाइट्स होती हैं। अगर आप चाहते हो कि लोगो मेकिंग वेबसाइट्स हैं, आपने क्या किया, वहां पर इमेज अपलोड कर दी। अब वो इमेज अपलोड करने के बाद, या फिर कोई आपने टेक्स्ट अपलोड किया, तो वो क्या, वो मशीन लर्निंग यूज करते हैं। बट मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जो होती है ना, वो काफी मच अमाउंट ऑफ पावर उनकी नीड होती है, लेकिन वो तो हमारे कंप्यूटर में है नहीं। तो वो वेबसाइट देते हैं हमें। हमने क्या किया, वहां पर अपने टेक्स्ट कैरेक्टर सारी चीजें अपलोड की, उसके अकॉर्डिंग हमें वो बढ़िया बढ़िया लोगो दे देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। यस, ऑनलाइन गेम्स, दीज ऑल आर थिंग्स दैट 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 वी कैन सी, हम लोग देख सकते हैं अपने आसपास। सिक्योरिटी तो हमारी बहुत खतरा है नहीं,
इससे सिक्योरिटी, देखो आप कैसा डेटा वहां पर अपलोड कर रहे हो। जैसे आप जब क्लाउड यूज करते हो गूगल ड्राइव, तो यहाँ पर आप डेटा को मैनेज नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पर डेटा का इंक्रिप्शन होता है। आपने डेटा की जो अपनी आपने जो इंक्रिप्शन स्कीमा है ये सब आपने नहीं पढ़ा होगा। यहाँ पर क्या होता है कि जो डेटा होता है इसमें आप कभी भी किसी भी वेबसाइट पे जब आप देख रहे होते हो तो किसी भी डेटा को हैक करना इतना आसान नहीं होता है। मैं आपको एक कॉमन सी चीज बताता हूं, हालांकि ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन आप जब किसी भी वेबसाइट से जब कोई डेटा रीड कर रहे होते हो तो ज्यादातर वेबसाइट एक स्कीमा यूज करती हैं। मैं आपको दिखाता हूं, वेट ए मिनट। जैसे मैं यहाँ पर एक दिखाता हूँ, जैसे ये गूगल है, तो गूगल यहाँ पर कौन सा स्कीमा यूज कर रहा है, मैं आपको एक सिंपल चीज दिखाता हूँ। तो इतना आसान नहीं है कि आप किसी भी वेबसाइट को, या देखो इस पर आता हूँ, देखो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि कौन सी सिक्योरिटी यहाँ पर यूज की जा रही है। देखो व्यू सर्टिफिकेट में जाओ, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डिटेल्स में आपको इंक्रिप्शन एल्गोरिथम्स दिखेंगी। ये देखो यहाँ पर कौन सा यूज कर रहा है, सिग्नेचर हैश एल्गोरिथम SHA-256, और इसका देखो सीरियल नंबर क्या है। ये हैक करना इवन इम्पॉसिबल है। अगर आपने ब्लॉकचेन का नाम सुना होगा ना, तो यहाँ पर आपको ये सब पता चलेगा कैसे ब्लॉकचेन डेटाबेसेस काम करते हैं। हाँ, साइबर टेक्स्ट, यस, क्रिप्टोग्राफी, तो यहाँ पर एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी यूज की जाती है, और एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी को हैक करना इम्पॉसिबल होता है। तो ऐसे मल्टीपल इंक्रिप्शन टेक्निक्स यूज की जाती हैं दैट इज इम्पॉसिबल टू हैक। आज आपने क्रिप्टोग्राफी का नाम तो मैंने जैसे ले लिया, आपने बिटकॉइन का नाम सुना होगा। ऐसी क्रिप्टो करेंसीज हैं, ओपन सोर्स अवेलेबल हैं, लेकिन इनमें जो इंफॉर्मेशन जो स्टोर की जाती है वो जल्दी कोई चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, तो दैट वाज अनदर थिंग। बट मैं चाहता हूं कि अब आप लोग अपने क्वेश्चंस मुझसे पूछें जो इस रिलेटेड टू दिस टॉपिक, आज क्लाउड से रिलेटेड जो अपने आपके जो क्वेश्चंस हैं वो मुझसे पूछें। इन पर आगे जो वेबिनार्स हैं मैं प्लान करूंगा, कोशिश करूंगा कि आपको ऐसी इंफॉर्मेशन और भी प्रोवाइड की जाए रिलेटेड टू क्रिप्टोग्राफी। व्हाई बिटकॉइन इज बैंड इन इंडिया। देखो बिटकॉइन ये ट्रस्ट के ऊपर, ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि लोग कहीं ऐसा ना हो जाए, गवर्नमेंट को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो पैसा इन्वेस्ट करें और लोगों का नुकसान हो जाए। हो सकता है कि ज्यादा अब जैसे बिटकॉइन है, अब बिटकॉइन का कंट्रोल किसी के ऊपर नहीं है, तो बहुत सारी गवर्नमेंट नहीं चाहती, तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। दिस पेपर इज अवेलेबल। ये जो मुझे कांटेक्ट करेगा, मैं एक मिनट वेट, ए मिनट, मैं अपना कांटेक्ट नंबर शेयर करता हूँ। जो मुझे कांटेक्ट करेगा मैं उसको शेयर कर दूंगा। अमेजोन AWS के बारे में बताइए। तो अमेजोन AWS इज अनदर टॉपिक, वो भी थिंक स्पीक की तरह है। वहां पर भी आप बहुत सारे डेटा को, जैसे पिक्चर्स हैं, इमेजेस हैं, वीडियोज हैं, ये सारे तरह के डेटा को आप स्टोर कर सकते हो। ओके, तो दिस इज कॉन्टेक्ट नंबर, दिस इज माई कॉन्टेक्ट नंबर वेयर यू कैन कॉन्टेक्ट टू मी, 462022, करेक्ट। अब जो भी पीपीटी जाते हैं इसकी PDF में, वो मुझे व्हाट्सएप करें, मैं उनको शेयर कर दूंगा। प्लीज सेंड सर्टिफिकेट लिंक, वेट ए मिनट सर, आपको शेयर करेंगे। सम इंटर्नशिप प्रोग्राम हियर, यस डेफिनेटली इट इज अबाउट टू स्टार्ट। कोई न्यू क्लास या वेबिनार, ओके, ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे ख्याल से आप नेक्स्ट वेबिनार और सर्टिफिकेट से में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, और टॉपिक इज नाउ क्लोज्ड। प्लीज वेट ए मिनट। I think KK sir is here. He will provide you information about some internship programs, Python programming, how to learn Python, and other webinars. KK sir, am I audible to you? Tomorrow same time में class होगा, yes. For certificate, please wait a minute. We'll provide you link in chat box. Till then, you can ask me a question related to this webinar. सर मैं क्लाउड का अटेंड करना चाहता है, उसका क्लास कैसे करें? तो क्लाउड पे हमारे कोर्सेज, आपकी जो इंफॉर्मेशन है आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। विच एप्लीकेशन वी कैन यूज इन कंप्यूटर्स फॉर पाइथन प्रोग्रामिंग। अगर आप पाइथन में बिगिनर हो तो आपको सबसे बेहतरीन एप्लीकेशन है आइडियली पाइथन। आइडियली पाइथन का ऑफिशियल GUI बेस्ड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इट इज आइडियली। ओके,
और आपको जो भी ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए बाद में, उनके लिए आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करें, यहाँ पर मैं आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। सर सी प्लस प्लस कब से स्टार्ट करिएगा? आप फॉर्म को फिल करें तो वहां जो आपके डिटेल्स होंगे वहां पर हम आपको एसएमएस या टेक्स्ट के थ्रू, आपको व्हाट्सएप के थ्रू शेयर करा देंगे। सर इलेक्ट्रिकल कोर के लिए कोई वेबिनार है आपके कोर्स में? यस डेफिनेटली, पीएलसी, स्काडा और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन पे एक ऑलरेडी हो चुका है। नेक्स्ट वेबिनार वी विल प्लान सून। इफ क्लाउड डेटा इज डिलीटेड बाय एनी मिस्टेक देन व्हाट? मैंने बताया क्लाउड पे एक क्लाउड सर्वर नहीं होता है, मल्टीपल बैकअप सर्वर्स आर आल्सो देयर। अगर एक क्लाउड में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट कर देते हैं, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है। ये सर ये नंबर मेरा है। मैकेनिकल, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सभी इंजीनियरिंग ब्रांचेस के लिए वेबिनार्स होते रहते हैं। आप जो भी डिटेल्स, आप जिनके डिटेल्स हमारे पास हैं उनको हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। और दूसरी चीज ये है कि आप फेसबुक पेज के, सॉफ्टवेयर इंडिया के फेसबुक पेज को लाइक करें, वहां पर ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, तो वहां से आपको नोटिफाई कर दी जाओगे कौन सा वेबिनार कब है। आई हैव यूज्ड Azure, आई हैव ट्रेन्ड ML मॉडल्स, हाउ टू डिप्लॉय देम, नेक्स्ट स्टेप। आयुष राजपूत, वेरी गुड। आपने जो सीखा है उसमें अगर आपको आगे हेल्प चाहिए तो इस नंबर पे कांटेक्ट करें। सर आई डोंट नो, certificate link please. API means simply providing as interface. Shivangi, yes. I think KK sir, I am audible to you? Yes sir, definitely you are audible. बहुत सारे स्टूडेंट्स कोर्सेज के रिगार्डिंग, वेबिनार्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। Okay, thank you so much students for joining this webinar. Okay, now please start. Okay guys, very good evening to all of you. This side Kautil, I'm from Softpro group of companies. I'm the marketing manager at Softpro. So I hope आप लोग को ये webinar definitely अच्छा लगा होगा। See, within span of 1 hour or 2 hours we can't teach you whole of the cloud computing, right? बट आपको डेफिनेटली एक थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा कि अगर आपको क्लाउड बेस्ड काम करना है या AWS पे या Azure पे काम करना है तो किस प्लेटफॉर्म पे या किस तरीके से आप काम कर सकते हो, एक थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा डेफिनेटली आप लोगों को। क्योंकि बीइंग अ बीटेक स्टूडेंट, बीटेक CS इंजीनियर आप हो या इलेक्ट्रॉनिक्स से बिलोंग करते हो, मैकेनिकल के हो, सिविल के हो, बट क्लाउड की अगर मैं बात करूं, क्लाउड कंप्यूटिंग की टेक्नोलॉजी की बात करूं, इट्स नॉट कॉन्स्टेंट टू एनी ऑफ द ब्रांचेस, राइट? सो आप लोग आगे इस चीज को फर्दर अगर आप लोग सीखना चाहते हो तो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन विद अस, राइट? वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेज अवेलेबल फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग। आप Azure पे काम करना चाहते हो या AWS पे काम करना चाहते हो या Salesforce पे काम करना चाहते हो, किसी पे भी अगर आप काम करना चाहते हो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट अस। आप लोग, हमारे कोर्सेज हैं, कुछ टेलर्ड कोर्सेज हम लोग ने अवेलेबल करा रखे हुए हैं स्टूडेंट्स के लिए, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो, प्रॉपर क्लाउड कंप्यूटिंग सीख सकते हो। इवन मैं सुन रहा था वेबिनार में कि आप लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स दे वर इंटरेस्टेड अबाउट द समर ट्रेनिंग, पाइथन ट्रेनिंग एंड मेनी अदर्स। आप भी जानते हो ड्यू टू दिस पैंडेमिक, दिस कोविड-19, हम लोग स्टक्ड हैं अपने घर में, बट फिर वही चीज मैं कहूंगा कि हम लोग अपनी लर्निंग नहीं स्टॉप कर सकते, क्योंकि हमारा बीटेक तो चल ही रहा है, या हमारा जो कोर्स है, जो हम सीख रहे हैं, वो चीज तो चल ही रही है, वो चीज स्टक नहीं हुई है। तो हम लोग घर बैठ के भी चीजें सीख सकते हैं, राइट? अभी आप लोग के कॉलेज में भी आप लोग को पता होगा, कुछ के कॉलेजेस बंद होंगे, बट ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और धीमे धीमे वो चीज ट्रैक पर आ रही है, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत बूम से आगे बढ़ रहा है ड्यू टू दिस कोविड-19, राइट? तो आप लोग सीखो। और इफ यू वांट, स्टार्टिंग में आपको अनिरुद्ध सर ने भी बताया होगा, वी हैव आवर ओन LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम दैट इज AI बेस्ड, जिसमें आपको बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वो चीज बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हो। हम लोग ने वो जो प्लेटफॉर्म बनाया वो इसलिए बनाया है ताकि स्टूडेंट को ये ना लगे कि वो एक ऑनलाइन ट्रेनिंग कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये दिक्कत आती है, उनको ये लगता है कि सर ऑनलाइन में हम लोग ऑफलाइन जितना नॉलेज गेन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ऐसा है ना आप लोग के साथ? ऐसा आप लोग, कुछ लोग सोचते हो ना? कम ऑन, कम इन द चैट विंडो, मुझे बताओ, ऐसा बहुत लोग सोचते होंगे ना कि हम लोग जो ऑनलाइन ट्रेनिंग करते हैं उसमें ऑफलाइन जैसा नॉलेज नहीं मिल पाती है, राइट? तो उसी चीज को हम लोग ने दूर करने के लिए, उसी चीज को रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग ने ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है,
और डेफिनेटली जो लोग पहले से सॉफ्ट प्रो से जुड़े हुए हैं उन्हें थोड़ा सा उसके बेनिफिट्स भी पता है। जो लोग अभी इस वेबिनार में नए हैं, शायद पहली बार सॉफ्ट प्रो के तरफ से कोई वेबिनार को ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप लोग को मैं बता दूं, एक बार कम एंड ज्वाइन सॉफ्ट प्रो। अभी वी आर गोइंग टू लॉन्च आवर समर ट्रेनिंग आल्सो इन अ वेरी अफोर्डेबल फीस। जो भी फीस हम चार्ज करते हैं उससे बहुत कम में और बहुत अफोर्डेबल फीस में हम लोग चीजें लॉन्च करने जा रहे हैं ऑन वेरियस टेक्नोलॉजीज, बी इट्स कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बी इट्स इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, ईआई, या आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हो तो आपके लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं। चलो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, राइट। मैं सीएस से स्टार्ट करता हूँ। जैसे सीएस के लिए नाउ डेज अगर मैं बात करूँ तो सीएस के लिए पाइथन, मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस इज अ वेरी ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी। अगर आप जितने भी अपने फ्रेंड से बात करो जो भी सीएस आईटी से बिलोंग करते हैं या आगे भी बीएससी आईटी या कंप्यूटर साइंस के किसी भी आप ग्रेजुएट से बात करोगे ना, या अंडर ग्रेजुएट से बात करोगे ना, ही विल सजेस्ट यू कि आप लोग पाइथन सीखो या डेटा साइंस सीखो या मशीन लर्निंग सीखो, राइट। So it's a very trending technology. So for computer science and IT students, we have a tailored course on Python programming language. We have courses on machine learning. We have courses on artificial intelligence. We also have web development technologies like PHP with its framework. We have Java with framework and many other technologies. Like, right? उसके बाद अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल डोमेन की, तो वी हैव सबसे पहले जो अगर मैं कोर बात करूं इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो दैट इज व्हाट एम्बेडेड सिस्टम्स। क्योंकि आप अगर बिलोंग करते हो इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड से तो आपको भी पता है कि आपका कोर है एम्बेडेड, राइट। सो वी हैव एडवांस एम्बेडेड सिस्टम्स कोर्सेज जिसमें हम लोग स्टार्टिंग स्क्रैच लेवल से स्टार्ट कराते हैं, जिसमें आपको सबसे पहले नॉलेज देते हैं हम लोग सी लैंग्वेज के बारे में, एम्बेडेड सी के बारे में, जिसके थ्रू आप प्रोग्रामिंग करते हो या इंटरफेसिंग करते हो आप माइक्रो कंट्रोलर्स में। तो माइक्रो कंट्रोलर्स भी आपको पता होगा बहुत तरीके के होते हैं। 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर है, 32 बिट माइक्रो कंट्रोलर है, जैसे AVR हो गया, ARM हो गया। इन सब चीजों पे हम लोग प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड कराते हैं स्टूडेंट्स को विद प्रैक्टिकल नॉलेज। क्योंकि देखो होता क्या है कि एकेडमिक्स और थ्योरी पार्ट तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, लेकिन जो इंडस्ट्रियल इम्प्लीमेंटेशन होता है वो चीज हम लोग ट्राई करते हैं स्टूडेंट को सिखाएं, क्योंकि आगे चल के आप लोग को आफ्टर दिस 4 इयर्स और 3 इयर्स ऑफ योर कैरिकुलम या कोर्स, उसके बाद आपको जाके इंडस्ट्री में काम करना है। तो अल्टीमेटली हमारा टारगेट, हमारा मोटिव यही होता है कि स्टूडेंट को हम इस तरीके से ट्रेन करें कि वो आगे चल के इंडस्ट्रियल रेडी बने। मतलब उसे ये चीजें ना सीखनी पड़े कि अगर मैंने सी में कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस पढ़ी है तो उसका एप्लीकेशन क्या होगा जाके इंडस्ट्री में, उसे ये चीज पता होनी चाहिए, राइट। और मुझे नहीं लगता कि जितने स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, मोर देन 90, कुछ को पता भी होगा, मोर देन 90% आई बेट यू कि लोगों को नहीं पता होगा कि अगर जो चीजें हम पढ़ रहे हैं अपने कैरिकुलम में उसका इम्प्लीमेंटेशन इंडस्ट्री में जाके क्या होता है, राइट। ऐसा है ना, सच्ची बोलना, मतलब दिल पे हाथ रख के सच सच बताना, ऐसा ये चीज है ना हम लोग के साथ कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन हमें सच में नहीं पता है। यस, और आई एम ऑल्सो बीटेक स्टूडेंट। आई डिड माई बीटेक वे बैक इन 2013 और डेफिनेटली यही चीजें हैं। मैं अगर आप मुझसे बोलोगे, मैंने फर्स्ट ईयर में सी पढ़ी थी, ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन की, इनकैप्सुलेशन की डेफिनेशंस मुझे आज भी याद है, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन शायद मैं अभी आपको नहीं बता पाऊंगा, एंड दैट इज अ फैक्ट। 2013 बोला था डियर प्रशांत, इट वाज 2013। तो यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि हम लोग जो चीज पढ़ते हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं पता हो, यही लैग बिहाइंड करते हैं। और आगे चल के जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो यही एक सबसे बड़ा पॉइंट आ जाता है कि आपने पढ़ा था तो उसका इम्प्लीमेंटेशन इंडस्ट्री में क्या होगा, और यही कंपनीज मांगती है। तो वही चीज हम लोग, हमारा मोटिव यही रहता है कि स्टूडेंट को हम इस तरीके से मोल्ड करें, इस तरीके से चीजें पढ़ाएं कि उसे इंडस्ट्रियल रेडी बना के हम सॉफ्ट प्रो से भेजें, राइट। और सर्टिफिकेट का लिंक मैं विनय आपको देता हूँ, ठीक है। मशीन लर्निंग टू मैकेनिकल भी कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। सी आजकल कोई भी टेक्नोलॉजी की बात करेगा, हम किसी भी टेक्नोलॉजी की, आप मशीन लर्निंग ले लो, आप पाइथन ले लो, आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स ले लो, आप क्लाउड कंप्यूटिंग ले लो, आप डेटा एनालिटिक्स ले लो, आप बिजनेस एनालिटिक्स ले लो, एंड मैनी अदर टेक्नोलॉजीज। आप किसी भी टेक्नोलॉजी की बात करो, इट इज नॉट कॉन्स्ट्रेंट टू एनी ऑफ द ब्रांच। मेरा मतलब कि आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हो, अब ऐसा कोई भी रूल नहीं रह गया है कि अगर आप CS के हो तो ही आप पाइथन सीख सकते हो, या आप मैकेनिकल के हो तो आप मशीन लर्निंग नहीं सीख सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट। और अगर आपने उस चीज में अपना करियर बनाना चाहते हो तो डेफिनेटली बना सकते हो, क्योंकि
कंपनी नीड्स अ ग्रेजुएशन डिग्री, नॉट अ पाइथन डिग्री और नॉट अ वो। आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आप एज अ पाइथन डेवलपर वर्क कर सकते हो। मेरे बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूँ, बहुत सारे जानने वाले हैं जो कि दे आर पास आउट फ्रॉम सिविल ब्रांच एंड मैकेनिकल ब्रांच एंड दे आर वर्किंग एज अ पाइथन डेवलपर और VLSI डेवलपर इन अ कंपनी। HCL में काम कर रहे हैं, विप्रो में काम कर रहे हैं, ठीक है। सो आप लोग भी प्लान करो, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहा था, इलेक्ट्रॉनिक्स में वी हैव एम्बेडेड सिस्टम्स, देन वी हैव इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन जो कि इस समय बूम पे है। अगर मैं बात करूं इंडस्ट्री 4.0 की, आप लोग ने सुना होगा, और नहीं सुना है तो डेफिनेटली उसके कुछ वीडियोस पढ़े हैं यूट्यूब पे, डेफिनेटली देखना कि दे कंपनीज आर इंडस्ट्रीज आर वर्किंग ऑन इंडस्ट्री 4.0। वो भी अब लैप्स होने वाला, 5.0 आने वाला है, ठीक है। आपको पता होगा डेली एडवांसमेंट्स हो रही है इंडिया में, बहुत सारी कंपनी सेटअप कर रही हैं। टेस्ला ने सेटअप किया है, इससे पहले सैमसंग ने सेटअप किया था, पैनासोनिक सेटअप अपना डाल रहा है। तो बड़ी बड़ी एमएनसीज, बड़ी बड़ी कंपनीज जो फॉरेन की हैं, एंड दे आर सेटअपिंग देयर सेंटर्स इन इन इंडिया। तो उन्हें क्या है, उन्हें ट्रेंड मैन पावर चाहिए। तो वो ट्रेंड मैन पावर कहां से मिलेगी? हम ही लोग अपनी बीटेक की डिग्री कंप्लीट करके, अपने कोर्स की डिग्री कंप्लीट करके वहां पे इंटरव्यू देते हैं जाके, राइट। Is this session is enough for cloud computing? No, Shraddha, this session was not enough for cloud computing. It was just a intro part जो हमने आपको दिया कि what is cloud computing, क्योंकि मुझे पता है बहुत लोगों को नॉलेज है, बट बहुत लोग यहाँ पे है जिनको जीरो लेवल से बताना पड़ता कि what is cloud computing। तो हम लोग ने ये सेशन इसलिए रखा था कि एक आप लोग को इंट्रोडक्शन मिले। फर्दर आप लोग और सीखना चाहते हो तो डेफिनेटली आप लोग हमसे जुड़िए, ठीक है। फिर PLC स्काडा के बाद, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के बाद वी विल कम टू PCB सर्किट डिजाइनिंग, राइट। वो भी कोर पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स का। देन हम बात करते हैं मैकेनिकल एंड सिविल के लिए। सबसे पहले मैकेनिकल सिविल के जितने भी बंदे यहाँ पे अवेलेबल है, मैं उनको एक चीज बता दूं, स्टार मार्क लगा के, आई एम ऑल्सो फ्रॉम सिविल बैकग्राउंड, आप लोग को एक स्टार मार्क लगा के मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि आप लोग सबसे पहले, सबसे फर्स्ट प्रियोरिटी पे रखना ऑटो कैड को, बिकॉज ऑटो कैड इज अ वेरी मैंडेटरी सॉफ्टवेयर। अगर आप लोग सर्च करो गूगल पे या कहीं पे भी, किसी भी पोर्टल पे, आपको पता चल जाएगा हरियाणा एंड राजस्थान आर 2 स्टेट्स, और भी होने वाले हैं, लेकिन वो दोनों मैंडेटरी ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे मैकेनिकल सिविल के जो भी स्टूडेंट्स हैं, अगर उन्हें जॉब चाहिए तो उन्हें ऑटोकैड मैंडेटरी आनी चाहिए, राइट। उसके बाद मैकेनिकल की बात करूं तो दे कैन गो फॉर, देखो मैकेनिकल में 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट पार्ट होती है ड्राफ्टिंग, जो कि आपकी ऑटोकैड से कंप्लीट होगी। सेकंड पार्ट होती है आपकी डिजाइनिंग, जो कि आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, लाइक सॉलिडवर्क्स हो गया, कैटिया हो गया, या क्रियो हो गया, ठीक है, NXCAD हो गया। फिर उसके बाद एक और पार्ट आता है एनालिसिस का, जो कि आप एनसिस से कर सकते हो। फिर फॉर सिविल की बात करते हैं हम, तो ऑटोकैड मैंडेटरी है। उसके बाद आप डिजाइनिंग के लिए और अपनी जो आप आरसीसी में चीजें पढ़ते हो, स्टील फाउंडेशन के लिए और क्या कहते हैं आरसीसी फाउंडेशन के लिए, इन सब चीजों सॉफ्टवेयर्स के लिए, पार्ट के लिए यू कैन यूज अ सॉफ्टवेयर दैट इज नेम्ड एज स्टैट प्रो। फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए यू कैन गो फॉर प्राइमावेरा। तो बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं मार्केट में, जिनके बिहाफ पे जॉब्स भी अवेलेबल हैं। बस हमें क्या है, हमें उन सॉफ्टवेयर्स को ग्रैब करना है, सीखना है, क्योंकि आप भी जानते हो अभी कोविड चल रहा है, शायद ये ईयर भी ऐसे ही निकल जाए धीमे धीमे का चल के, पता नहीं, वी डोंट नो, क्योंकि जब से ये चीजें आई हैं हर चीज अनसर्टेन हो गई है, ठीक है। लेकिन जॉब्स अवेलेबल हैं, जॉब्स चल रही हैं, लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, दे आर अर्निंग, ऐसा कुछ भी स्टॉप नहीं हुआ है, ठीक है। और समर ट्रेनिंग की मैं आप लोग की बात करता हूं, सो बीइंग अ बीटेक स्टूडेंट और अ डिप्लोमा स्टूडेंट, आप लोग को पता है समर ट्रेनिंग इज अ फेज जो एक स्टूडेंट के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है। अगर उसे आपने सीरियसली लेके नहीं किया तो डेफिनेटली आगे चल के, अभी तो शायद प्रॉब्लम ना आए, बट आगे चल के जब आप अपने जॉब के लिए जाओगे, इंटरव्यूज के लिए जाओगे ना, तब आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम आने वाली है। क्योंकि समर ट्रेनिंग एक ऐसा फेज होता है जहां पे आप चीजें सीखते हो। एक समर ट्रेनिंग होता है, एक समर इंटर्नशिप होता है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। इन समर ट्रेनिंग यू लर्न द टेक्नोलॉजी, एंड समर इंटर्नशिप जो होती है, इंटर्नशिप में आप उस टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करते हो जाके कंपनीज, राइट। सबसे पहले मेकअप योर माइंड, और देखो समर ट्रेनिंग 100% होनी है, आप AKTU से हो या किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से हो, या आप किसी डिप्लोमा कॉलेज से हो या किसी गवर्नमेंट कॉलेज से हो, सबके लिए समर ट्रेनिंग इज मैंडेटरी। और आपको भी पता होगा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने सब कुछ एकदम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लाने का इंफॉर्मेशन या आदेश दे दिए हैं। तो आप लोग भी प्रिपेयर हो जाओ कि आप लोग इस बार अपनी जो समर ट्रेनिंग करने वाला हो वो मोस्ट प्रॉब्ली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही करोगे। तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा, राइट, कि आप लोग गो फॉर सॉफ्ट प्रो। आप सॉफ्ट प्रो के टेक्नोलॉजी, सॉफ्ट प्रो के जो जितने भी
हमारे पास टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है ना, उसमें से चीजें चूज करिए और स्टार्ट करिए ट्रेनिंग करना। एंड डेफिनेटली मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ, मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि जो भी आप टेक्नोलॉजी चूज करते हो, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गोइंग फॉर अ पाइथन ट्रेनिंग, तो आपको जो जो आप हमारे पॉलीप्रेप पे ट्रेनिंग करोगे एलएमएस पे, उसका जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो एकदम इक्वल टू ऑफलाइन ट्रेनिंग मिलेगा। उसमें आपको जो बेनिफिट्स मिलने वाले हैं वो बहुत अच्छे हैं, राइट। और इससे ज्यादा मैं चीजें नहीं बताऊंगा, वरना उसे आप कहोगे सर दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग, बट आई एम नॉट ट्राइंग टू डू एनी काइंड ऑफ मार्केटिंग। आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि एक बार आप सॉफ्ट प्रो का एलएमएस जरूर एक्सपीरियंस करो, एंड डेफिनेटली यू विल फील द डिफरेंस। क्योंकि बहुत सारे, देखो आप भी जानते हो, ऑनलाइन पोर्टल्स बहुत सारे अवेलेबल हैं जहां पे आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, इवन यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री चैनल्स हैं जिसको आप सब्सक्राइब करके बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। लेकिन एक जो लाइव ट्रेनिंग होती है, लाइव ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस होता है, वो अलग पार्ट होता है, राइट। तो वो चीज हम आपको देना चाहते हैं। तो गाइज आप लोग स्टार्ट करो। जो भी क्वेरीज है मैं अपना नंबर चैट विंडो में फिर से डाल दे रहा हूँ। माय नेम इज कौटिल्य। आप लोग किसी भी टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग, किसी भी समर ट्रेनिंग के बारे में आपको पूछना है, टेक्नोलॉजी के बारे में पूछना है, या आप किसी ब्रांच से हो, आप कंफ्यूज हो कि मुझे क्या करना चाहिए, अगर आप इनिशियल लेवल पे स्टार्ट करना चाहते हो या एडवांस में आपको कुछ सीखना है, या इस टेक्नोलॉजी के क्या प्रोज एंड कॉन्स है वो आपको पूछना है कि ये टेक्नोलॉजी करके मैं कहाँ जाके प्लेस हो सकता हूँ, या क्या चीजें, ये चीजें सीख के, या मेरी कोडिंग खराब है मुझे क्या सीखना चाहिए, एक्स वाई जेड जितने भी आपके क्वेश्चंस है आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। वी हैव अनदर, ओके, श्योर श्योर श्योर। मैं आप लोग को यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, आप लोग www.certificate@softpro.com पर जाना, और यहाँ पे जो आपको कोड मांगेगा दैट इज 1059। जैसे ही आप अपना कोड एंटर करोगे आपसे डिटेल्स मांगेगा, एंड आपका सर्टिफिकेट आपके डेस्कटॉप पे, आपके लैपटॉप पे और आपके मोबाइल स्क्रीन पे डाउनलोड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, राइट। सो और किसी की कोई क्वेरी हो, किसी की कोई क्वेरी है? अच्छा, वन मोर थिंग, बिफोर कंप्लीटिंग दिस सेशन, बिफोर एंडिंग दिस मीटिंग, आई वांट टू नो द फीडबैक ऑफ द ट्रेनर। हम भी चाहते हैं कि हमारा एक छोटा सा फीडबैक हो। सो आउट ऑफ 5 हाउ मच नंबर यू वांट टू गिव फॉर दिस वेबिनार? ओके, ग्रेट ग्रेट। सी, इससे हमारा भी मोरल बूस्ट होता है। हम भी चाहते हैं कि हमारा फीडबैक, अगर हमें इस फीडबैक को देख के हम लोग ऑल, या इट्स 5 अमेजिंग सेशन, ग्रेट, डेफिनेटली थैंक यू सो मच गाइस। और मैं शायद दोबारा हम लोग कल मिलेंगे। वी हैव अ सेशन ऑन साइबर सिक्योरिटी। इट्स आल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी। आप लोग साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानते होंगे, सुना भी होगा। कल हम लोग आपको इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन दिखाएंगे। हमारे पास एक इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट है, शी इज वर्किंग विद अ वेरी गुड कंपनी, शी विल गाइड यू अबाउट साइबर सिक्योरिटी, राइट। अच्छा, जिसके सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हो रहे हैं गाइस, आप लोग पैनिक मत करो, ये लिंक खुला रहेगा। नेटवर्क इश्यूज की वजह से नहीं होते हैं तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सर्टिफिकेट सबके डाउनलोड हो जाएंगे और इसी लिंक और इसी कोड के थ्रू ही होंगे। प्लीज सेंड इट अगेन। देखो आप लोग लिख लो, मैं वर्बली फिर से बोल देता हूँ, 1059 इज द कोड। जो भी कोड आपसे मांगेगा, certificate.training80@softpro.com, वहां पे जाओगे तो आपको जो मैनुअली कोड मेंशन करना है दैट इज 1059। नो शुभांगी, इट्स 1059। वेट, आई एम राइटिंग हियर, ठीक है। और जो जो समर ट्रेनिंग के लिए इंटरेस्टेड है मुझे व्हाट्सएप पे पिंग करो, मैं आप लोग को डिटेल्स बताऊंगा। एंड डेफिनेटली आई एम टेलिंग यू, जो हम लोग ने अभी फीस स्ट्रक्चर लॉन्च करने जा रहे हैं ना, एज कंपेयर टू एनी अदर कंपनीज, इट्स वेरी अफोर्डेबल। प्लस मैं अफोर्डेबल की बात बहुत कम करता हूं, मैं उस पर ज्यादा फोकस करूंगा कि क्वालिटी आप देखना एक बार कि व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ द ट्रेनिंग एंड द ट्रेनर, राइट। मेरा मानना यह है कि हम लोग को क्वालिटी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, राइट। फीस तो अपार्ट है, देखो जितना अच्छा कॉलेज उतनी ज्यादा फीस, जितना अच्छा बर्गर, मतलब 2 बर्गर होते हैं ना, एक मैकडी का भी होता है और एक ठेले का भी होता है, तो हम लोग प्रेफर कौन सा करते हैं? मैकडी का ही करते हैं ना।